to join the webinar. Good evening, sharp at 8 o'clock. We are all here in the 7-day series of free webinar. It was on empowering entrepreneurs. So we believe already you are an entrepreneur and who want to scale up someone. First day we have covered disruption is key to success. There were some three questions predominantly sir has asked whether you will like to work with the same team again when the COVID is opening, whether you will like to be with same customer with which will allow you to reach to the target which you are desiring, and whether you will be offering same services and product which you are offering before the COVID. And one exercise also he had given to us on the first day, that action which is difficult but result oriented, which will be transforming you or your business per se. And the second series was leadership multiplier. Second day, what was the take home was, second day was very categorical. Leadership is always seen in crisis. Otherwise, just naming oneself leader doesn't mean that they are leader. So leadership is envisaged when the crisis come, how you handle the situation when the things are not in your control. Then third day we were on a sales multiplier. He has given all the सेल्स मल्टीप्लायर करने के लिए पहले अपनी टीम को आप सही तरीके से करिए, और देयर शुड बी वन ड्राइवर. सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, पायलट होना चाहिए, ऑटो पायलट मोड में होना चाहिए. जहां जहां आपको अपग्रेड करना है वो करेंगे तो अपने आप फिर सेल्स मल्टीप्लायर होगा. स्केलिंग योर बिजनेस ऑल्सो वाज फोकस ऑन दैट के let's understand how you can scale up your own, come out of your comfort zone, try to implement whatever learnings you are doing, at least one particular aspect, even if you implement, that will make your life uh, great. And yesterday was very very important. Sir has told everyone wants to be millionaire. Now let's go to a one step ahead, that is billionaire. And what were the three key mindset is that you create something, but don't fall into love with that creation. Leader always start from the scratch. In whatever circumstances you have been thrown out of that company, doesn't mean that life is ended. सो उन्होंने एक बहुत ही कल बढ़िया बोला था, बहुत से लोगों को ना लाइफ, आधी लाइफ तो जो और तो में, अरे जो मेरे पापा ये करते तो मैं ये कर पाता, जो मैं ये होता तो वो हो पाता. जो और तो जब हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी आर रूइनिंग आवर लाइफ. सो मोर यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, more you have a control on your activities, more focus you are, more target oriented. So whatever tips, and sir is also kind enough, as starting से हम लोग बोल रहे हैं कि sir has given us a permission to record all the webinars, and it will be available to at a later on to see the public. And I think on a fifth day we had a team building. So their time he has also given one course, so which we most of us, those who were interested in upgrading, have already enrolled. Even myself and brother is attending, and my team will be attending. So always you should be ready. So the whole intensive learning program was to understand कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में, वो हमें पढ़ते रहना चाहिए. Then there has to be bold decisions. When if you can take decision, it is now or never. मैं 2 साल के बाद सोचूंगा, ये होने के बाद करूंगा, तो वो कुछ होता नहीं है लाइफ में. जो है वो इस क्षण में है, आज है, अभी है. विद द गिवन सेट ऑफ things in your hand, whatever best you can do, you should do. You should also he also taught us how to create a core team. Then how to increase your sales and business, that also we covered. There are new methods to improve the future business. I think become customer centric. This is the last layer which will be today we will be going through. And those of you who are joining new, जो लोग 6 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें तो अभी आज मालूम ही हो गया होगा कि मुकुंद चौहान has started. He was staying in Bhayandar, his career as a sales telemarketing guy. Then from there he was moved on to multi-level marketing. From there he has found the purpose of his life, that I will become a SME growth expert with sharing whatever mentorship I have learned through my practical application of understanding the businesses. And from there
from 2013, he has taken a mission and he has already transformed 5,000 lives with 200 SMEs, converting them to grow their business exponentially by his training, coaching, and mentoring. And he has given us a mission statement: please find out your purpose for the life, be dedicated, be motivated, be self, and be learning. He yesterday also mentioned कि invest 10% of your earning in your own upgradation. न्यू मेथड, न्यू पैटर्न, जब तक आप नहीं आप खुद को अपग्रेड, सी प्रोसेस बन गई, प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली you cannot expect your subordinates to follow. It is not necessary that the boss should be always there available in the office. That is not it means, but it should be on a autopilot mode. And let's now have a welcome our favorite coach, Mr. Mukund Chauhan, powerhouse. The 3E defines Vandana: energy, enthusiasm, and striving for excellence. Same is the case with Mukund sir. Mukund sir, are you ready? Thank you so much. I am ready. Just give me 1 second. I'm connecting. Are you able to hear my voice? Yes, sir. Wait a minute. I'm connecting my Bluetooth. Just 1 second. But Just there is a little disturbance coming. Yeah. But it is not connected yet. I am connected. Okay. So all of you are ready to charge your battery. See, full day you are exhausted, but at 8 o'clock also, if you are ready to learn new things, itself shows that your interest towards upgrading your own self. So those of you who are present here, in fact, we had thought, Mukund sir, what we had thought with those who are present, like Hiral, can we ask Hiral to share a 30-second, a brief catch up? Absolutely. Hiral ma'am, would love guys today I would love to, आज मैंने 6 दिन काफी बोला है, मैं चाहता हूं कि आप अपने ओपिनियन शेयर कीजिए 30 सेकंड में कि हाउ यू हैव फाउंड माय सेशन. सो आई वांट यू टू शेयर इन 30 सेकंड. सो आपको क्या टेक अवे मिला एंड व्हाट लर्निंग यू हैड इन 30 सेकंड. सो वी कैन स्टार्ट वन बाय वन. सो एज Vanna ma'am required ma'am, and then one by one people can go. Yeah, I just want to like to brief the overall session is like whatever leadership quality we have to establish in ourselves, and what things we have to look out for as a team leader or a team worker also. Like if we are in a member of team, so how what things we have to understand. So from that angle we should we have got the idea. And the session, your voice is breaking, beta. Billionaire was the best. Hello. Billionaire was the best. Hello? That is what we have received the message. We can get right away what what things we have to look for it in order to develop that team leader attitude. So I got a good experience on all these sessions. Thank you. Thank you. Thank you, Hiral ma'am. Now next, let's go to Nitin Majitia. Nitin bhai, તમે કેટલા સેશન અટેન્ડ કર્યા? This is my first session. Okay, great. So we welcome Rotarian CA Nitin Majitia, and he's into a very senior position in he's a 6 partner firm with 100 employee with them. It's a very big company. Wow. So I will have expect after the session we will keep 30 seconds for you, sir. Okay? Okay. Nitin Pathak ji. Yeah. आपने 2-3 सेशन किए हैं शायद? कितने? Yeah, I attended 2 of them. Yes. So what were your take home? Yeah, it was very good. In fact, I have become very complacent. So now, after hearing him, now I also thought I should, build up my energy level once again.
Correct. Great. So he is from Thank Thane. you. He is my auditor. My books are audited by Mr. Pathak. Okay, great. Cool. हाँ. Fantastic. Fantastic. Acha, Fantastic. Dimple, CA Dimple is also just joined, I think, a day or before. Dimple, can you speak? Yeah, I can speak. Okay, Veda. So Yes. how many lectures you have attended till now? Almost 5 or 6. Oh, great. So you One can. or two I missed. Okay. So tell us your, what was the take homes? Take home is that we can start from scratch anyway, and we should not get afraid of starting from anywhere. So life is not ended, so we can start, and he has given us such a good motivation that we can do anything what we want and where we want. Fantastic. Yes. Fantastic. Cool. Fantastic. Super. 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 There is now Bhavin Mehta. Yes. Bhavin ji? आज आप सब लोगों का बोलने का दिन है और मेरा थोड़ा सुनने का दिन है थोड़े टाइम के लिए. Bhavin bhai, you can unmute yourself. Is Bhavin ready? Hello. So we have one more person coming. Nimesh bhai, we are asking your last 6 days experience. Nimesh bhai, I think one only session you have missed probably. 30 seconds માં તમારા ટેક હોમ્સ કે તમે આ વેબિનાર્સ અટેન્ડ કર્યા એમાંથી whatever મતલબ what are your viewpoints, how you enjoyed? Nimesh bhai, What have you learned? What you have learned? Nimesh bhai, you unmute yourself and speak. હા સંભળાય છે, થોડું પણ એકો આવે છે. બોલો. Echo આવે છે voice માં. હા, Nimesh bhai? First, we have learned team building. Yeah, team building you have learned, okay. Yeah. Then give importance to all. Yes, that is also very key. We give importance to all. All who Great. are connected, correct. Importance of accountability we have learned. Okay. Okay, great. Super. You are getting? Yes sir, we are getting. Yes. Hello. હા હા નિમેશ ભાઈ પહોંચે છે તમારો અવાજ. Yes, yes. We are listening. You are able and we can hear your feedback. Leadership is important. We have to drive leader. Okay, good, fantastic. So Great. I think Great. now next CA Jayesh Parekh is ready. Jayesh bhai, would you like to contribute? Romal sir has also come today. He is a event manager. Sir, you will like to, but have you attended any of this session? फर्स्ट इम्पोर्टेंट के मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी सेशंस आपने मेरे अटेंड किए 2, 3, 1, 6, 5 तो उसका व्हाट योर टेक अवे वाज बिकॉज टुडे इज माय टाइम टू हियर यू टुडे सेशन इज देयर बट आई जस्ट वांट टू हियर यू आउट दैट व्हाट यू हैव लर्नड व्हाट यू गेव फॉर माय फीडबैक एट द सेम टाइम आई कम टू नो दैट व्हाट द पॉइंट यू आर टेकिंग अवे इन योर लाइफ. So Prakash, you will like to add something? You are ready? Vandana ma'am, can I add one line? Yeah, Romi here. Romi sir, बोल लीजिए. So I was very impressed with that lady who just said, wherever you are, you start from scratch. And today is the first day. So that was very motivating for me. Although I attended the first day today, just 10 minutes back. But Yeah, she said, sir. very beautifully, wherever you are, you start now. Yeah. Thank you for that. So sir, at the end of the session, we will like to take your feedback for sure. Yeah, people who are having a first day, unfortunately, this is the 7th day. But see, every end is a beginning. I believe every end is a beginning. Correct. ये बहुत Rightly so. अच्छी बात हुई.
बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता था ये मीटिंग के पहले, ऐसा लगा। लाइक व्हाट आई हैव लर्नड इज, सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है कि भाई आपको सभी को रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ना है। एट द सेम टाइम जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा देना है, उनको मोटिवेट करना है, और कस्टमर की बात सुनना ज़रूरी सीखना है, और ज़रूरत के समय पे बोलना सीखना है, और अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट करके आके लेके जाए, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। थैंक यू सर। थैंक यू। Who spoke last so I can write down the name? राकेश अग्रवाल जी ऑल्सो आई थिंक कंटिन्यूअस आ रहे हैं। राकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? So even I come to know that what I've shared, I'm sure राकेश जी रेज हैंड, तो आप थैंक यू बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। He's happy. That's what it is implied. So now let's. Tejasvi Padnekar is there. Would you like to contribute? हाँ भाई. Or we can take like that. हाँ madam. Yes madam. This is CA Rakesh Agrawal madam. Yes sir. हाँ, tell me. First of all, I am thankful to you madam, Vandana madam, for this wonderful session. You are organizing wonderful session. And yes, Mukund sir, your all sessions were really motivated, and really we learned a lot. From leader is a dealer in hope. What is the main? Yes. And yes, also you have told us that you should create leader in your organization. That was a wonderful thing, sir. एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी सर, कि आपने एक चीज बोला था कि जैसे कि आपने बोला था कि अगर मैं आज ये सोच के आऊंगा कि मुझे कुछ पैसा कमाना है तो मैं 100% मेरा पूरा, सो वॉट एवर यू वांट टू गिव, वो आपको पहले सोच लेना चाहिए कि 100% देना है मुझे, उससे मुझे आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी इशू है, बट 100% देना है मुझे, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस है वही 70% लेस हो जाता है, ये हमने सीखा। Yes, you also told us that time is unlimited. Your existence is not. That is very much important, sir. And yes, we also learned that it's not about money. It's about legacy. And what you possess you. Yes, absolutely fantastic. Fantastic. Homework बहुत अच्छा किया है. ये जो line है, sir. The thing is what I attended only 3 sessions yours. मैं मिस आउट कर चुका हूँ आपके कुछ सेशंस, और एक और एक अच्छा था कि नेवर फॉल इन लव विथ योर क्रिएशन, ऑलवेज डिटैच, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर ग्रोथ सर। सर बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे, दिस ऐसा नहीं कि 7 days, yes we have learned a lot from you and we very much thankful to you sir, thank you very much for this wonderful session sir. And Vandana madam, thank you because you have taken the initiative madam, thank you very much madam. हाँ, थैंक यू। ये तो मुकुंद सर ने प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया, सो एंड देन वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि शार्प 8 o'clock हम हर दिन मिले, हर एक के साथ उनका जो एक टॉपिक था वो शेयर करें, एंड मुकुंद सर हैज लिव्ड अप टू द मार्क, व्हाट आई कैन से फ्रॉम माय साइड, यू नो। So great, anyone great. Still wants to speak can raise the hand, so then we can start and the they can, session. And then yes. अगर किसी को है so they can. So even I see because 6 days I have spoken it. तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हैं आप. That is very important. हाँ, that's more It's important. not what you have learned, what you are taking away. Some or other way, absolutely. Anybody to speak, say it, and then we begin with today's session. Okay. Mr. Jayesh Parikh wants to speak. I'll just unmute him. Is this one? Jayesh bhai? Yes. Perfect. Hello. તો જયેશભાઈ બીજું બંધ કરવું પડશે, નહીં તો એનો એકો આવશે. તમારા રૂમમાં લેપટોપ અને મોબાઈલ બેઉ ચાલુ હશે ને તો એક જગ્યાએ. Okay, give me 5 minutes.
few minutes. તો તમે એન્ડમાં તમારી આપજો વિશેષ ટિપ્પણી. We are welcome. Yeah. So let's begin the session today. And now floor is yours. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर केयर. Yes. Sir, shall I begin, Vandana ma'am? Yeah, you mute everyone and then unmute or whatever. Should I unmute everybody? एक मिनट, mute all. Yes. हाँ, mute all. Should I mute all? मैं मैच કરી નાખ્યું. I am નાખ્યું. not a host. You are the. હા, એટલે મેં કરી નાખ્યું. ઓકે. હા હા કહું છું સર, એક સેકન્ડ. મુકુંદ સર ક્યાં છે? મુકુંદ સર, હવે તમે ચાર્જ લઈ શકો છો. Yes, thank you so much. Thank you so much, all of you, first of all, coming here and had a wonderful, fantastic, amazing time, all of you. With thank you VNP Investment and thank you VNP Investment के जिन्होंने ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की and VNP Infotech जिन्होंने ये चीजें ऑर्गेनाइज की. वंदना मैम, स्पेशल थैंक्स टू यू. You have taken an initiative that लोग ये सारे आए और मैं उनको अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकूं, तो बहुत मजा आया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, को जितना मजा आया उतना ही मजा मुझे भी आया. लीडरशिप, सेल्स मल्टीप्लायर, टीम बिल्डिंग सेशन वाज वेरी प्रोडक्टिव. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आप सबने टेक अवे लिया होगा. बिफोर मैं आज का सेशन बिगिन करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं. I just forgot to mention Bhavesh bhai Nelko. Is he there? One of my client is also attending every day. Today he is missing. And our Rohit has attended. So Rohit, आप last में बता देना. Shailesh Oja wanted to speak. Shailesh Oja is a regular coming. Every day he has attended. Shailesh भाई, તમારે કઈ કહેવાનું છે? Kailash has also attended every day, every session. So there are people who have actually made us feel so happy that they were continuous regular attendee, and every day there are new attendees also have come. So Shailesh bhai wants to speak something, so let us give 30 seconds to him fast. Yes. And Mr. Kailash has written in chat box, Ma'am, I was correlating the speech with the Gita and the other things. They are just repetition of the. I have read the Gita 1 or 2 times. Whatever they have taught, the crux of the Gita is the telling that one. Okay. So it is wonderful section. Yeah, thank you, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you. And I will just repeat for the participant. Mr. Kailash want to say leadership, sales multiplier and team building session was very, very productive for him. So thank you, Kailash ji. And we appreciate. Devang is attending. CA Devang Smart is attending from last 2-3 days, I believe. Devang, you will like to say something? Praful ji also wants to speak something. I hope people who are new to it have value. मैं स्टार्ट करूंगा. जितने 6 दिन फायर स्टार्ट की है, तो जो लोगों को मिला है उसके बारे में हम सुन रहे हैं. Great. So Praful is telling good evening to all. Mukund sir, you are a very good motivator. I like your passion and energy levels and would like to know its secret. अच्छा, उसका secret जानना चाहते हैं. Be passionate for what you love and just be motivated yourself. Self motivation is the key to success. And in short sessions of 1 hour each, you have shared knowledge which we would have got by reading many books. Thank you very much. So that's what I actually today happened to talk to Mukund sir, and I said one thing what I like from you is that why should I be traveling on all the experiences? Someone is more experienced who has already કરેલી ભૂલોનો સરવાળો એટલે અનુભવ. તો તમે ઓલરેડી કશું પામી લીધું છે, તો અમે એમાંથી જ ગ્રાસ્પ કરીને સીધા આગળ વધી છીએ. So you can bypass that time and energy, So that's what we are learning. Why there should be learning is that I may not get time to read 10 books, but in 1 hour you have given us the gist of that 3-4 books, which is very powerful. No doubt, the way you said yesterday कि પૂરું એક પેજ વાંચ્યા પછી 2 વાર કલાક બેસીને સોચવું પડે કે કેવા શું માંગે છે. So that is also important. Absolutely. No few things, but very well. All sessions were absolutely amazing, and my takeaway were great punchlines like 10% of your income. Absolutely. So 10% of your income should be invested in growth. So can I begin, Vandana ma'am? Okay, so
I am audible to everybody? If I am audible to everybody, please type Yes, sir. Y. Yes, sir. Now I'm muting myself. You can continue. So let us begin today's journey. It has been a fantastic time with all of you guys. बहुत मजा है मुझे और मैंने बहुत एंजॉय किया. थोड़ा दुख इस बात का लग रहा है कि आज हम अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि हर एंड एक नई शुरुआत की तरफ हमें लेके जाती है. हर एक एंड हमें नई शुरुआत की तरफ लेके जाता है और एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होगी आज के बाद. तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है. मैं इमोशनल प्राणी हूँ, तो आई इजीली गेट कनेक्टेड विद पीपल और वही मेरी स्ट्रेंथ भी है. I do not have a very high IQ. For that I have my CEO Chirag Darji. He has a very great IQ. I am a person with great EQ. तो मैं EQ में मेरा IQ इतना strong है. I have a CA with and I have a CEO for my IQ. My IQ is very strong and that's my plus point. But at the same time I'm feeling very sad. Voice is not available. Acha, all other are able to hear me, so please type Y because I think only Tushar bhai has a problem. Then it has to be checked. Otherwise, okay. So आप लोगों ने 6 दिन में बहुत सारी चीजें सीखी. आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ. बट उसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, I would love to tell everybody, do take massive action. There is no substitute to massive action. I've learned from all my role models, all my mentors, people who have taught me. I've learned that massive action is a key to success. Massive action. And I've learned from Tony Robbins. Tony sir always say one thing, which is one of my favorite line. What I've learned from is when he speaks, he always says that guys take massive action. And the one line he says, like, you know, that massive action is a key to success. Massive action creates momentum. So I believe in taking a massive action. So all of you massive action लीजिए. 6 टॉपिक अलग अलग कवर किए. लीडरशिप पे बात की. थोड़ा रिकैप कर दूंगा 2-3 मिनट में फटाफट. बिजनेस बनाने वाला कोई और होना चाहिए, बिजनेस चलाने वाला कोई और होना चाहिए. अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रो करना है तो मीन्स अगर आप ओनर है तो ओनर, बिजनेस क्रिएटर और रनर अलग अलग होने चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस बनाने वाला और बिजनेस चलाने वाला ये दोनों अलग अलग होने चाहिए. अगर बिजनेस बनाने वाला ही बिजनेस चलाने लगता है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंटरप्रेन्योर की कम हो जाती है. जो भी कंपनी एसएमई से कॉर्पोरेट बनते हैं वो बिजनेस चलाने वाले को लेके आते हैं. चाहे वो टीम लीडर हो, सीईओ की पोस्ट दे दो, टीम लीडर की पोस्ट दे दो, जनरल मैनेजर की पोस्ट दे दो, लेकिन बिजनेस चलाने वाला कोई और होना चाहिए. आई हैव आल्सो गाइस टॉट यू. मैंने कई सारी चीजें आप लोगों से शेयर की. उसमें से मैंने डिसरप्शन की बात की थी. डिसरप्शन, आपको डिसरप्ट करना है. नए पैटर्न, नई टेक्नोलॉजी, नया अपग्रेडेशन करना है. पुरानी चीजों को भूलना है. आपके एक्सपीरियंस से बड़ा आपका लर्निंग होना चाहिए. आपके अनुभव से बड़ा आपकी लर्निंग होनी चाहिए. आज आप जो जानते थे शायद अब आगे काम में नहीं आ सकता. मैं नहीं कहता हूँ सारी चीजें, जैसे कैलकुलेटर बनाने का अगर किसी को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था लेकिन आज कोई काम का नहीं है, वो बड़ा उनका एक्सपीरियंस था. तो इसी तरह से जो एक्सपीरियंस अब काम में नहीं देते उनको भूल के नई चीजें सीखनी है, क्योंकि शायद मार्केट के साथ डिमांड चेंज होते जाती है. और मैंने आप लोगों से शेयर किया, अलग अलग टॉपिक से लेके बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. मैंने आपको सेल्स का रैपो बिल्डिंग सिखाया था, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू बिल्ड अ रैपो. उसके बाद में मैंने सिखाया था लीडरशिप में कि लीडर्स आर डीलर्स इन होप. चाहे कितना भी लॉस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलवेज कीप गिविंग होप टू योर टीम, फैमिली मेंबर, वेंडर, पार्टी, जिनसे भी मिलो 24/7 into 365. आपका काम है होप देना. बिकॉज जिस दिन आपने होप देना बंद कर दिया उस दिन आप लीडर नहीं रहते, उस दिन आप एक एवरेज व्यक्ति बन जाते हो. देखो, एक साधारण व्यक्ति एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होप देके बनता है. मैं ऑलवेज कहता हूं, जो मैं सीखा हूं मेरे गुरुओं से, कि लीडरशिप इज ऑलवेज सीन इन क्राइसिस. आप बुरे टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं उससे आपका लीडरशिप का मेटल दिखता है. इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ देन आपको सारे चमत्कार लीडरशिप के प्रॉब्लम में दिखाने होंगे. आपकी टीम आपको तब रिस्पेक्ट मानेंगी नहीं जब अच्छा सब पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, लेकिन जब टाइम ठीक नहीं है, कस्टमर चला गया, पार्टी टूट गई, लॉस हो गया, और उस टाइम पे आप कैसे एटीट्यूड रखते हैं उससे आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत और आपको फॉलो करती है. बिकॉज लीडरशिप इज ऑलवेज सीन इन क्राइसिस. अच्छे टाइम जाना, बर्गर खाना, उससे लीडरशिप नहीं दिखती, बट लीडरशिप इज ऑलवेज सीन इन क्राइसिस. क्या बुरे समय में कैसे खाए, दैट शोज योर ट्रू कैलिबर. सो दैट्स व्हाट आई हैव टॉट. मैंने और भी कई चीजें सिखाई थी कि अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करो, लोगों को एम्पावर करो. पावर से आप लीडर नहीं बना सकोगे, पर एम्पावर करके लोगों को आप लीडर बना पाओगे. तो क्रिएट बेटर लीडर देन योरसेल्फ. लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, मैं सिखा दूंगा तो ये भाग जाएगा.
आप नहीं सिखाओगे तो आपकी कंपनी का अंदर रह के सत्यानाश करेगा। रिचर्ड ब्रैंसन को किसी ने बहुत अच्छा पूछा था कि यू ट्रेन योर पीपल सो वेल, व्हाट इफ दे लीव? एंड रिचर्ड ने आंसर दिया था, व्हाट इफ आई डोंट ट्रेन एंड व्हाट इफ दे वर्क एट माय ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैं ट्रेन ना करूं और वो लोग मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कैसा काम करेंगे? रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं दो चीजें ऑलवेज करनी चाहिए। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप किसी ने उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी तो पढ़ना। रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं कि अपनी टीम को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दो कि वो लोग लीडर बने। दूसरी, इतनी मोहब्बत दो कि लोग छोड़ के जाए ही नहीं। ये रिचर्ड ब्रैंसन के प्रिंसिपल है। ये दो प्रिंसिपल जो रिचर्ड ब्रैंसन यूज करते हैं और जिसके कारण वो इतने कामयाब हुए हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कल के सेशन में कि आपको डिटैच होना है। हम सब कहीं ना कहीं जीवन में आके सिक्योरिटी आ जाती है, पैसों के साथ, स्टेटस के साथ, लाइफस्टाइल के साथ। अंडरस्टैंड, जब आपका स्टेटस आ गया, मोह माया क्रिएट हो गई कि अब मेरा अंधेरी का घर बन गया है, ऑफिस बन गया है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे स्टेटस को कुछ होना नहीं चाहिए। जब भी आप सिक्योरिटी को होल्ड करोगे आपका ग्रोथ रुक जाएगा। जो लोग कॉर्पोरेट बनते हैं, जो लोग बड़े बनते हैं, वो लोग सिक्योरिटी को जाने देते हैं। वेन डायर ने जैसे कहा था, व्हाट यू पजेस पजेस यू। जिन चीजों को आप पजेस करते हो वो आपको पजेस करती है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? All the successful people have the ability to let go what they have in order to get what they want. आपको हाथ छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मेरी करंट सिक्योरिटी उसको कुछ भी ना हो और मैं आगे वाला लेवल अचीव करूं। अगर ऐसा ही होता तो सारे लोग बिलियनर बन जाते। लोग बन क्यों नहीं पाते? क्योंकि लोग छोड़ नहीं पाते। नया अचीव करने के लिए पुराना थॉट प्रोसेस और पुरानी चीजें छोड़ नहीं पाते। मैंने 3 दिन पहले या कल ही मैंने कहा था कि वेन डायर ऑलवेज कहते हैं, इन ऑर्डर टू गो अहेड इन योर लाइफ you need to leave two things behind, one thing, another thoughts. thoughts का मतलब पुराने बिलीफ सिस्टम आपको छोड़ने पड़ेंगे। भावेश पुरोहित जी ने भी बोला है, हैप्पी अप्लाई इन माय फील्ड व्हिच इज मार्केटिंग। थैंक यू सो मच। आपको दो चीजें, नया पुराना बिलीफ सिस्टम छोड़ना होगा। नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, नहीं ऐसे ही चलता है, नहीं ऐसे ही होता है, ये बिलीफ सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। ये होता है थॉट। और दूसरा है कि आपको पुराने थिंग्स मतलब सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। कल के सेशन में जो मैंने बात की थी, लेट अस बिगिन आवर टुडे सेशन कस्टमर सर्विस। हाउ मेनी पीपल वांट टू बी कस्टमर सेंट्रिक? प्लीज टाइप व्हाई। कितने लोग कस्टमर सेंट्रिक होना चाहते हैं? थैंक जयेश भाई बोल रहे हैं, प्रफुल्ल भाई कस्टमर सेंट्रिक होना चाहते हैं। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। मेरे पास कुछ डेटा है, अभी मैं साथ साथ में स्टडी करते जाऊंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, बिकॉज आई बीन ट्रेनिंग एसएमई फॉर लास्ट 3 इयर्स और 200 से ज्यादा रोहित जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर चुका हूं। लोग कहते हैं कि हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड है, और वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं सेल्स ओरिएंटेड होते हैं। बोलना अलग है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। लोग सुपर कॉन्शियस सुपर लेवल पे कहते हैं सुपरफिशियल के वी आर customer centric, but they are not customer centric. Most of the organization 94% not customer centric, they are self centric. कैसे मैं आगे बात करूंगा। Now क्यों इंपॉर्टेंस है कस्टमर सेंट्रिक? आपको क्यों बनना है? आपको कस्टमर सेंट्रिक क्यों बनना है? अच्छा, अभी ध्यान से मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा जो पीपीटी में नहीं है क्योंकि काफी लंबी हो जाती है, इसके लिए मैंने लैपटॉप में रखा है। लॉयल कस्टमर अप टू 10 times as much as their first purchase। एक लॉयल कस्टमर आपसे 10 times खरीदने की उम्मीद रखेगा। 6 to 7 times more expensive to acquire a new client to is it to keep a current one। अच्छा, 6 से 7 टाइम महंगा है, 6 से 7 टाइम महंगा। एक नए क्लाइंट को आने के लिए 7 टाइम की मेहनत लगती है और पुराने क्लाइंट को रखने के लिए 1 एफर्ट लगता है, और नए क्लाइंट को लाने के लिए पैसा, मार्केटिंग, ये सारा 6 to 7 टाइम का कॉस्ट लगता है। 62% of global consumer have stopped doing business with a brand or organization due to poor customer service। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 62% लोग जो हैं आपकी सर्विस और आपका प्रोडक्ट लेना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर कस्टमर सर्विस। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ डेटा है। अच्छा, हमें कस्टमर सेंट्रिक क्यों रहना है? क्योंकि कस्टमर को लगेगा कि हम कस्टमर की कितनी केयर करते हैं। यू विल स्टे इन कॉम्पिटिटिव। अगर हमको कॉम्पिटिटिव रहना है तो हमें कस्टमर की चिंता करनी है, कस्टमर की चिंता। व्हेन यू थिंक अबाउट योर कस्टमर विल थिंक अबाउट यू। हाउ मेनी एग्री? व्हेन यू थिंक अबाउट योर कस्टमर विल थिंक अबाउट यू। अच्छा, आपके कस्टमर प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप बरोबर नहीं कर रहे, ठीक है ना, मेरे को क्या पड़ी है। इफ यू हैव दैट एटीट्यूड
then you will not grow. If any of your client tell you the problem, तो आपके दिमाग में पूरी रात भर वो घूमना चाहिए. उसका लाइव एग्जांपल है, हमारे क्लाइंट है जो फंडिंग रेस करना चाहते हैं. मैं मेरी पर्सनल स्टोरी भी बताते जाऊंगा और आगे आज बहुत शेयरिंग करूंगा मैं आपके साथ. So he wants to raise a funding and he is having a mattress company. एक फंडिंग रेस करना चाहते हैं 4 करोड़ रुपए का, and he is looking for a VC. तो कल रात को मैं उनका फोन आया और हमारी 2-3-4-5 दिन से बात चल रही थी इस मुद्दे पे. तो कल रात को मैं 4:45 बजे तक बैठा था और मैंने 3:30 बजे वीसी को मैसेज किया. मैंने वेंचर एक इन्वेस्टर है जो 25 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं. पता नहीं मैं सो नहीं पा रहा था. 12:30 बज गए. माय वाइफ टोल्ड मी कि सोते हैं, मतलब आप, मेरी बच्ची भी है तो वो भी काफी आवाज कर रही थी. लाइट चालू थी, ऑब्वियसली बेडरूम है, लेकिन फिर भी क्या है, लाइट जरा सा भी कुछ भी आवाज आता है तो उड़ जाती है. छोटी सी बेटी है मेरी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी बिकॉज मेरे क्लाइंट का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है. मैंने 3:30 बजे वीसी को मैसेज किया 3:30 रात को. Hi, this is Mukund Chauhan. I'm a business coach. I have a X number of X client who is looking for kind of investment. How can I get in touch with you? मेल आईडी लिया और मेल पे मैंने 3:30 बजे मैं 1.5 घंटे तक तो रिसर्च कर रहा था. एंड आई गॉट सम इन्वेस्टर फ्रॉम लिंक्डइन. मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने अपने लिंक्डइन से कनेक्शन निकाले. एंड 4:37 को आई वेंट टू स्लीप. आई कुड हैव स्लेप्ट एट 12. बट हमारे क्लाइंट हमारी तकलीफ तो हम सही रास्ते पे. कितने लोग मानते हैं आउट ऑफ द वे जाना अपने क्लाइंट के लिए? 12 बजे सोना तो मुझे भी बड़ा पसंद है, लेकिन वो क्या, वो हाँ हेलो सर, તમે म्यूट થઈ ગયા. हाँ यस यस आई नो. जो भी क्लाइंट को आप अच्छी सर्विस देते हैं वो लोग आपके पास वापस आते हैं. अच्छा, एक चीज ऑलवेज याद रखना लाइफ में, सेल्स में कहा जाता है कि कस्टमर फर्स्ट टाइम जब आप सेल करते हो ना, उसमें आप उतना नहीं कमाते हो, आप रिपीट सेल में कमाते हो. हाउ मेनी अग्री? यू ऑलवेज मेक मनी इन रिपीट सेल. दैट्स हाउ द लाइफ. यू ऑलवेज मेक मनी इन रिपीट सेल. एंड यू विल ऑलवेज रिपीट सेल जब आपका कस्टमर अप्रोच है. यू इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी ऑफ योर कॉल सेंटर. अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जैसे आप कस्टमर सर्विस देते हैं ना, आपका मार्केटिंग कॉस्ट होते जाता है. आपको पता है एप्पल का मार्केटिंग कॉस्ट कम है. अभी आप बोलोगे एप्पल तो मार्केटिंग करता है. भाई एप्पल जो है अपना ब्रांड दिखाने के लिए, बाकी आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है. अभी अगर आप देखते हो ना एप्पल मार्केटिंग करता है, तो एप्पल मार्केटिंग वो खाली ब्रांडिंग के लिए कर रहा है, कस्टमर एक्वाजिशन के लिए नहीं. वो क्या होता है ना, एक लेवल पे आपका मार्केटिंग कॉस्ट कम होता है और आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, बिकॉज आपने कस्टमर केयर. तो आज अगर आप मुझे बोलोगे कि एप्पल मार्केटिंग करता है, वो सेल्स के लिए नहीं करता. एप्पो, वीवो, ये सारे जो ब्रांड है दूसरे है, वो मार्केटिंग के लिए करते. नो डाउट दे आर न्यू ब्रांड. एप्पल अभी मार्केटिंग करता है जस्ट कि उनका नाम बना रहे, बाकी दे आर नॉट मार्केटिंग फॉर सेल. वो सेल्स के लिए मार्केटिंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये पिछले सालों में, अगर आप 20 साल में देखा जाए, जब से स्टीव जॉब वापस आए, भयंकर कस्टमर सर्विस दी उन्होंने, बढ़िया कस्टमर सर्विस दी, और उसके कारण आज जो है वो सेल्स के लिए मार्केटिंग नहीं करते. मैंने डेटा पूरा पढ़ा हुआ है. So let us begin our today's session, customer centric. Vanna ma'am, can we have the first slide? Trust me, आज का सेशन बड़ा enlightenment होगा. You will get to learn so many things about it. बहुत मजा आ जाएगा. तो पहला स्लाइड है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वर्सेस आई सेंट्रिक अप्रोच. अच्छा, नाउ बहुत सारे लोग बिजनेस में कहते हैं कि हमारा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और आई सेंट्रिक. अच्छा, ये दोनों अप्रोच में फर्क क्या होता है? आई सेंट्रिक अप्रोच में आपको जैसे तैसे आपका सर्विस बेचना होता है. आई सेंट्रिक अप्रोच में आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. आई सेंट्रिक अप्रोच में कस्टमर फीडबैक नहीं होता है. आई सेंट्रिक अप्रोच में आप अपना फायदा खाली देखते हैं. और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वो होता है जहां पे यू आर थिंकिंग अबाउट कस्टमर, यू आर क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. आप कस्टमर के हिसाब से सोच रहे हैं, कस्टमर को क्या वैल्यू ऐड करके सोच रहे हैं. ये दो टाइप के अप्रोच होते हैं. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल यूज आई सेंट्रिक अप्रोच, और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बहुत कम लोग यूज करते हैं. So customer centric approach, thinking from the customer perspective. एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, जो बहुत $1 billion क्वेश्चन है. आप अपनी टीम, आप सब लोग रोज पूछ सकते हैं. इवन आई आस्क माई सेल्फ, यू वांट, यू कैन राइट डाउन, हाउ कैन आई एड वैल्यू टू माई कस्टमर लाइफ? दिस इज अ $1 billion क्वेश्चन you need to ask yourself. Customer centric approach, how can I add value?
how can I add value to my customers life today. अच्छा, ये रोज का क्वेश्चन है, रोज का. How can I add value to my customer life today? It means this is a $1 billion question. जैसे मैंने कहा है कि क्वेश्चन क्रिएट योर रियलिटी, क्वेश्चन शिफ्ट योर फोकस. ये क्वेश्चन आपको रोज पूछना है अपने आप को कि हाउ कैन आई एड वैल्यू टू माय कस्टमर लाइफ. अच्छा, आई सेंट्रिक अप्रोच में कस्टमर आपके ज्यादा नजदीक आएगा कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में? दोनों में से कौन से अप्रोच में कस्टमर आपके ज्यादा नजदीक आएगा? ही विल कम नियर टू यू. फर्स्ट अप्रोच में कि सेकंड अप्रोच में? कस्टमर आपके नजदीक आएगा. पहला कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आई सेंट्रिक है, पहला आई सेंट्रिक है, दूसरा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है. पहला वाला जो है मैं आई सेंट्रिक बोल रहा हूं, लेफ्ट. यस. Second one, absolutely understand. Customer-centric approach is the key to success. Absolutely, everybody writing. So customer-centric approach. You know, today मैंने Amazon के जेफ बेजोस का इंटरव्यू सुना था. उनका एक ऑडियो था, तो उनको पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, aren't you afraid कि इतने सारे ई-कॉमर्स साइट आ रहे, आप अफ्रेड नहीं है? तो जेफ बेजोस ने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज आई एम नॉट इनटू कंपीटिंग, आई एम इनटू क्रिएटिंग फॉर माय क्लाइंट. बहुत प्यारा लाइन बोला था उन्हें. I am not into competing, I am into creating for my client. Wonderful line said by Jeff Bezos. तो बोलता है मैं तो क्रिएटिंग के लिए हूं, मैं कंपीटिंग के लिए हूं ही नहीं. तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंटली कस्टमर के बारे में सोचता होता है, कस्टमर के बेनिफिट के बारे में, कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में, कस्टमर को कैसे इजी चीजें मिले. तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिलाता है. तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन आई सेंट्रिक अप्रोच एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या, ये वाला क्वेश्चन आपको भी पूछना है और आपकी टीम को भी पूछना है कि हाउ कैन आई एड वैल्यू टू कस्टमर लाइफ. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली यू शुड आस्क योरसेल्फ, this question your team also should ask to themselves for the customer. टीम को भी यही बोलना है कि how can I add more value to customer life? How can I add more value to customer life? Okay. और अभी मैं आज आपको $1 billion एडवाइस देने वाला हूं यहाँ पे. अच्छा, do we care for अच्छा, कस्टमर और क्लाइंट के बीच में क्या, which word is more better? Which word give you the more better feeling, customer or a client? Which word gives you connection with the person, either customer or client? The personal feeling, client. Yeah, absolutely, मेरे client. अच्छा, absolutely. So from today onward, I'm sure आप तो बहुत सारे लोग यहाँ पे CA है, but all the self start saying in your organization word client rather than a customer. अच्छा, कस्टमर वो होता है जिसको माल बेच देते हैं और हम अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, बट क्लाइंट वो होता है जिसको हम केयर करते हैं, नर्चर करते हैं, जिसके बारे में हम परवाह करते हैं. यस, सी एवरी वर्ड हैज अ पावर. अपना वर्ड का एक पावर होता है. सो स्टार्ट यूजिंग वर्ड क्लाइंट रादर देन कस्टमर. मैंने यहाँ पे पर्पसली लिखा है बिकॉज मैं डिफरेंशिएशन बताना चाहता था आपको. So I have used this purposely. In your office, use word client. We care for a client, we nurture for a client, we think for a client, we go out of the client. So start using word client. In fact, you know, कहते हैं ना, your word create your world. Use a different language. Language has a power. When you say client, you will have emotional association. आपका इमोशनल एसोसिएशन हो जाता है जब आप बोलते हैं हमारे क्लाइंट है रादर देन हमारे कस्टमर है. तो एक्चुअली बिजनेस इज ऑल अबाउट एन इमोशन. Okay, so use this word. The number one question I'm sure you all have written is that how can I add value to customer life? Every day you need to ask. जो भी आंसर आएंगे उस पर आपको अप्लाई करना है. Okay, can we have the next slide, वंदना मैम? अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इस पे मैं कंप्लीट सेशन लेता हूं मेरे 1 साल के प्रोग्राम में. कंप्लीट सेशन लेता हूं. हु आर योर वैलिड और टारगेट कस्टमर? यू नीड टू डिसाइड आपके टारगेट कस्टमर क्या है. आई हैव सीन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, दे टारगेट एवरीबॉडी. हम लोग सबको सर्विस देते हैं. यू नीड टू डिसाइड योर निश मार्केट. आपको आपका निश मार्केट डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर कौन है. हु आर योर टारगेट क्लाइंट, जिसको बेचने से विन विन क्रिएट होता है. They value your service
At the same time, you also get satisfied by serving the client. Do not serve everybody. Hello, सबको मत बेचो. Do not, अभी अभी एप्पल के क्लाइंट है, वो Xiaomi और एप्पो के वो नहीं है. आपका टारगेट क्लाइंट डिसाइड होना चाहिए. अभी बीच में एक लिपस्टिक का ऐड आया था, एक मीटिंग में गया था, स्टार्टअप मीटिंग में. तो वहां पे उन्होंने जो फाउंडर आए थे, एक लिपस्टिक कंपनी के ओनर, जिन्होंने सोनम कपूर को साइन किया था ब्रांड एम्बेसडर के लिए. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द लिपस्टिक कंपनी विच शी इज प्रमोटिंग, बट मुद्दा ये है, तो somebody raised the question, why Sonam Kapoor, why not Deepika Padukone? She is also beautiful, gorgeous. Then founder gave a very nice answer, because Sonam Kapoor 3-4 साल पहले की बात है, she looks very like a college going girl. लगाने वाली लेडीज जो है वो 18 से 25, 24, उनका जो ब्रांड था वो कॉलेज स्टूडेंट टारगेट करते हैं, 18 से 24. तो सोनम कपूर उसको वेरी वेल रिप्रेजेंट कर पाएंगे. आर यू गेटिंग माय? However, दीपिका इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल का मुद्दा नहीं था. कॉलेज की लड़कियां सोनम कपूर से एसोसिएट करती है, काफी पतली है, और कॉलेज की लड़कियां एसोसिएट करती है. They were targeting only and only college girls, and that is the reason they have decided to take not Katrina and not they have decided to take Sonam Kapoor. अभी मैंने बोला ये क्या लॉजिक है? उन्होंने कहा बिकॉज कॉलेज गोइंग लड़कियां सोनम कपूर से ज्यादा कनेक्ट करती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका 1, 2, 3 आपके कस्टमर बेस डिसाइड होना चाहिए कि who are your target customer. I have seen in business people are serving to everybody. Do not serve. हो सकता है आपका प्रोडक्ट वैसा है, बट निश क्रिएट करेंगे तो उसका फायदा होगा. When you create a niche, आपका फायदा होगा, स्पेशलाइज हो जाएंगे. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक LIC एजेंट हमारे क्लाइंट है, तो वो LIC एजेंट है. जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, केस स्टडी ले रहा हूं. ओके, आपको समझ में आएगा. तो LIC एजेंट क्या करते हैं, वो जॉब वाले को भी बेचते हैं पॉलिसी, प्रोफेशनल को भी बेचते हैं, एंटरप्रेन्योर को भी बेचते हैं, दूध वाले को भी बेचते हैं, सबको बेचते हैं. और मैंने उनको कहा सिलेक्ट द निश, क्या आप किनको बेचेंगे. तो मैंने बोला कौन सा कस्टमर बेस आपको आपकी सर्विस के लिए ज्यादा वैल्यू देगा, आपको प्रीमियम मिलेगा और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अच्छा, टारगेट वो क्लाइंट करो जिनसे साथ डील करके आपको भी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज विन विन क्रिएट होना चाहिए. विन विन, विन फॉर देम, विन फॉर यू. तो वो आर योर टारगेट क्लाइंट. देन मैंने उनको बोला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट गिविंग अ केस स्टडी. मैंने बोला व्हाई नॉट यू बिकम अ MSME एजेंट. I am advisor for MSME. I am MSME financial consultant. It means I only and only give my wealth creation idea to SME और MSME. That's it. And उसके बाद उनको बहुत सारे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए. तो क्या हो गया, टारगेट ग्रुप डिफाइन हो गया. उसके बाद में MSME ग्रुप वाले उनको मीटिंग्स के लिए भी बुलाने लगे. एक निश, क्योंकि आप किसको बेचना चाहते हैं वो एकदम सिलेक्टेड होना चाहिए. सो डू नॉट सेल इट टू एवरीबॉडी. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा कोई छूटना नहीं चाहिए, उसके चक्कर में कोई बरोबर आता नहीं है. हाउ मेनी अग्री? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, उसके चक्कर में कोई भी बरोबर आता नहीं है. कुछ लोग फिर मेरे को क्वेश्चन पूछे, अच्छा सर सब बिजनेस नहीं लेना चाहिए, सबके पीछे मत भागो, कुछ निश क्रिएट करो. या अगर आप बिजनेस में हो तो ये कि भाई 1 करोड़ के ऊपर की फाइल, 50 लाख के ऊपर, मतलब एक अंडरस्टैंड वर्क प्रीमियमली काम करो. नहीं सर, लेकिन अगर दूसरा टारगेट, अरे भाई पूरा 125 करोड़ का जनता है, 6 करोड़ का मुंबई है, आपका टारगेट ऑडियंस भी है, लेकिन टारगेट ऑडियंस क्यों पता है, आपका कस्टमर के दिमाग में ब्रांड एस्टेब्लिश होता है. जैसे मैंने ब्रांड एस्टेब्लिश किया, मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूं यहाँ पे, तो पहले मैं LIC ट्रेनिंग देता था, फिर MLM वाले को ट्रेनिंग देता था, फिर सेल्स मैनेजर को ट्रेनिंग देता था, फिर डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेनिंग देता था. कहीं भी ब्रांड ही नहीं बन पाता, इसलिए मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था. फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने ट्रेनिंग ली, और हमें बताया गया कि एक निश सिलेक्ट करो और उनको ही ट्रेनिंग दो. मैंने बोला कौन सा निश को सर्व करने से आपको मजा आएगा, तो मैंने बोला SME नंबर 1. दूसरा, कौन सा निश को सर्व करने से मोटा पैसा आएगा, माल रोकड़ा, कैश, गांधी जी, मैंने बोला SME. किसको कोचिंग देके आपको मजा आएगा और पैसा आएगा, मैंने बोला SME. देन आई हैव स्टॉप गिविंग ट्रेनिंग, ड्यू रिस्पेक्ट अगर कोई LIC एजेंट है तो यहाँ पे, बट LIC एजेंट, MLM कंपनी, डेवलपमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, आई हैव स्टॉप ट्रेनिंग एवरीबॉडी. और वहां से 2000
16 एंड 17 से मैंने जर्नी शुरू की। आई विल ओनली ट्रेन एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मकसद ये है, अनऑर्गेनाइज है, उनको मुझे कॉर्पोरेट बनाना है। कॉर्पोरेट मेरा टारगेट क्लाइंट नहीं है, मेरे टारगेट क्लाइंट सोलोप्रेन्योर, एसएमई और एमएसएमई, दैट इज इट। तो दोज आर, एंड दैट्स द रीजन, अगर आप देखेंगे मेरे ब्रांड में मैं कहता हूं आई एम अ एसएमई ग्रोथ एक्सपर्ट, आई विल नॉट ट्रेन टू एवरीबॉडी, ये निश है। अच्छा, जब मैंने ये निश सिलेक्ट किया, माय इनकम ग्रू 14 टाइम्स। मैं ऑलवेज कह चुका हूं, मैं भाईंदर से लोखंडवाल आ गया, मैं जब मेरा क्लाइंट मेरे बारे में सोचे तो सोचना चाहिए मुकुंद भाई मतलब एसएमई को ट्रेनिंग देते, सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप अपना ब्रांड क्रिएट करो, नहीं तो आपके कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा क्लाइंट को भेजना भाई इनके पास। कभी कभी हम लोग को धंधा लेना, कोई ने पण मोकलो, कोई ने पण, बस कोई ने पण, तमें रेफरा करता जरो। अरे क्लाइंट कंफ्यूज है, किनको भेजना। कभी कभी क्लाइंट ऐसे लोगों को भेजेगा जिनको सर्विस देते देते आपके चप्पल घिस जाएंगे। ऐसा तो सीए लोगों की केस में नहीं हो सकता, लेकिन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई ने पण मोकलो, बस तमें मोकलो खाली, हमें दुकान लઈને बैठा છીએ, वी आर रेडी, हम लोग बैठे ही हैं, सिलेक्ट करो वो आर योर वैल्यूड एंड टारगेट। अच्छा, वो एलआईसी एजेंट, तो दूसरा मैंने ये भी बताया कि एसएमई को टारगेट करें। वन ऑफ द एलआईसी एजेंट आई ओनली टोल्ड ओनली फोकस पीपल हु हैव इनकम बियॉन्ड 50 लाख। सी, जब प्रीमियम टारगेट करोगे ना तो प्रीमियम अर्निंग करोगे। सबको सब कुछ बेचने मत जाओ, ब्रांड क्रिएट नहीं होगा। ब्रांड क्रिएट करना है तो आपको टारगेट कस्टमर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? मैं अभी एक काफी प्यारी किताब पढ़ रहा हूं, आप सबको बताता भी हूं। चलो, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, ये प्यारी सी किताब है। 22 लॉज ऑफ इम्यूटेबल मार्केटिंग में पढ़ रहा हूं अभी, मैं इसका फोटो भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट। इसमें लिखा है ब्रांड परसेप्शन है। लोग प्रोडक्ट नहीं, लोग परसेप्शन बाय करते एक टाइम के बाद। जब जाते हैं तो मांगते हैं कोलगेट, हम जाते हैं तो मांगते हैं पेप्सी या कोका कोला। अच्छा, दूसरी और ब्रांड नहीं है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और भी तो मीठा सोडा बनाने वाले लोग हैं, हम या तो हम पेप्सी मांगते हैं, हाउ मेनी अग्री? तीसरा तो हम पूछते ही नहीं है कभी, 7 अप और गलती से मांग लिया तो किसी ने, बाकी हम अगर जाए पेप्सी देना कोक देना, पेप्सी देना कोक देना। सी, अंडरस्टैंड, पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, पीपल बाय द परसेप्शन। अगर आपको परसेप्शन क्रिएट, पीपल डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, पीपल बाय द परसेप्शन। आपका कस्टमर आपके बारे में क्या परसीव करता है, वो है परसेप्शन। और आपके क्लाइंट के लाइफ में परसेप्शन बनाना है, परसेप्शन बनाना है आपको। अभी जैसे मेरा नाम आए तो आना चाहिए मुकुंद चौहान एसएमई, वो कॉर्पोरेट बनाते, सिंपल। एक क्लाइंट जानी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूं, नहीं आप लाओ ट्रेनिंग लाओ कॉर्पोरेट की लाओ, हाँ मैं बच्चों पेरेंटिंग भी कराऊंगा, मैं ये भी कराऊंगा, मैं वो भी कराऊंगा, नहीं। एक ही टारगेट क्लाइंट लो और उनको ग्रो कराओ, और उसके बारे में अंडरस्टैंड करो, उनके बारे में स्टडी करो और उनको ग्रो कराओ, और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आई एम फलाना 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 एंड माई क्लाइंट बेस इज दिस, मैं इनको ही कैटर करता हूँ। अच्छा, हमारे पास रियल एस्टेट एक एजेंट है जिनको मैंने कोचिंग दी थी, उनको मैंने कहा कि आप क्या करते हैं? सर मैं सब करता हूँ। ये सब करने वाले लोग बड़े टेंशन वाले लगते हैं, लोग कभी ग्रो नहीं करते। सर मैं सब करता हूँ, मैं भाड़े पे ऑफिस भी दिलाता हूँ, घर भी दिलाता हूँ, बिकवाता भी हूँ। मिला नहीं, कोई एक टारगेट सिलेक्ट करो। फिर उन्होंने सिलेक्ट किया कि मुझे कमर्शियल अगर मैं करूंगा ना तो बहुत पैसा बनाऊंगा, और कमर्शियल को करने में मेरे को मजा भी आता है और मैं पैसा भी बनाऊंगा। मतलब मैंने बोला विन आपकी साइड से भी है, विन कस्टमर की साइड से भी, ओके लेट्स डू इट। फिर हमने उनको बना दिया कमर्शियल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट। आई ओनली डील इन कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो हुआ क्या, उसके बाद जिनको मिलते थे वैसा बोलते थे, और कोई भी कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है इनको फोन आता, अरे कमर्शियल करते हैं ना आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस कस्टमर के दिमाग में आपका क्या परसेप्शन जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब करना बंद करो, टारगेट सिलेक्ट करो। मैं नहीं कहता टारगेट ऑडियंस कुड बी 1 और मोर देन 1। अच्छा, टारगेट में क्या क्या टारगेट कर सकते हैं? पहले तो निश में सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी, दूसरा आप टर्नओवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीए हैं तो देयर आर मेनी कैटेगरी कि आप 1 करोड़ के ऊपर वाले को ही सिखाएं, 1 करोड़ ऊपर वाले की फाइल करनी है, 50 लाख के ऊपर, सिलेक्ट द निश, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी यू विल ग्रो। नहीं तो सर्विस दे 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 के मतलब हालत खराब हो जाएगी। हाउ मेनी एग्री? सर्विस देते देते जिंदगी खत्म हो जाएगी, योर लाइफ विल एंड, योर लाइफ विल एंड। सर्विस देते 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 कई एलआईसी एजेंट बेचारे घूमते ही रहते हैं। मैं सारे एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ टारगेट सिलेक्ट करो, कौन सी टारगेट। नहीं तो ऐसे वो
इसीलिए निश सिलेक्ट करना है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या करना है पता है, वंस यू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, फिर उनके बारे में भयंकर स्टडी करना, भयंकर एकदम जबरदस्त। मान लो अगर आपने बोला कि यू विल कैटर टू 100 करोड़ प्लस कंपनी, एक एग्जांपल में दे रहा हूं फॉर सीएस एंड प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो 100 करोड़ प्लस कंपनी के लिए स्टडी करना शुरू करो। दूसरा, वैसे ग्रुप ज्वाइन करो जहां पे 100 करोड़ प्लस के लोग आते हैं, आपका टारगेट वही है और आपका जाना वही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको जाना भी उधर ही जिधर 100 करोड़ प्लस के लोग आते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, सिलेक्ट योर टारगेट क्लाइंट और उनके बारे में भयंकर स्टडी करना शुरू कर दो। ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? आर देयर कस्टमर वो है। अच्छा, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं आपको। अगेन ये भी एक मतलब बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने भी, मैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरी कंपनी का भी मैं लूंगा। आर देयर कस्टमर वो हैव नीड बट आर नॉट बीइंग करंटली सर्व्ड बाय द इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री में ऐसे क्लाइंट है जिनको नीड है लेकिन कोई उनके साथ देखता ही नहीं है। ये थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आपको अभी नहीं आए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसका आंसर करना है। क्या आपके कस्टमर, आर देयर एनी कस्टमर, मतलब जो हैं जिनको मैं यहाँ कस्टमर के बदले अभी मैं क्लाइंट बोलूंगा, कस्टमर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। ओके, सो आर देयर क्लाइंट हु हैव नीड बट नॉट बीइंग करंटली सर्व। कुछ ऐसे क्लाइंट बेस एग्जिस्ट करता है जिनको कोई सर्व ही नहीं कर रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू थिंक कि ऐसा कौन सा कस्टमर बेस है जिसको कोई इंडस्ट्री आपकी सर्व नहीं कर रही है, उन वहां पे आपका ध्यान जाए। नेक्स्ट, यस यस, अभी ये क्वेश्चन का आंसर आप अभी, पुराना वाला जो क्वेश्चन था पिछला वाला, आर देयर कस्टमर हु आर अनहैप्पी विथ ऑल द ऑफरिंग ऑफ द करंट इंडस्ट्री। क्या ऐसे कस्टमर हैं जो अनहैप्पी है ऑफरिंग के साथ आपकी इंडस्ट्री में? मतलब जिनको हो सकता है, अगर आप सीए हो तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ कस्टमर हमेशा नाखुश रहता है? अभी मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। हमारा इंडस्ट्री में क्या होता है ना, लोग सीख तो लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। हाउ मेनी अग्री? हमारा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गैप है, पीपल आर नॉट एबल टू अप्लाई। उनका प्रॉब्लम है सीख सब लेते हैं पर अप्लाई नहीं कर पाते। सो यस, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कस्टमर है वो आर नॉट हैप्पी विद द ऑफरिंग। कौन सा ऑफरिंग? ट्रेनिंग। क्यों हैप्पी नहीं है? बिकॉज फॉलोअप एक सबसे बड़ा गैप है। ओके, सो दैट्स व्हाट आउट, और इसके लिए हम लोग फॉलोअप बहुत तगड़ा रखते हैं। तो इसी तरह से आपके इंडस्ट्री में क्या गैप है, गैप क्या है, प्लीज फाइंड आउट द गैप, कि ऐसा कौन सा चीज है जो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, मोस्टली अनसेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ लिख सकते हैं उसके बारे में आप लोग कि आपकी इंडस्ट्री में नॉर्मली कस्टमर कौन सा बहुत बड़ा गैप है जो लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते चाहते हुए भी। अगर कोई ऐसा आंसर आ रहा है आपके दिमाग में तो लिखिए आप, कि लोग नाखुश रहते वो चीज के साथ करने के बाद भी। करंट ऑफरिंग जो हम दे रहे हैं उससे लोग नाखुश हैं, तो ऐसा क्या है? जीएसटी। ओके, भाविन जी बोल रहे हैं जीएसटी में अगर सर्विस दे दी, मतलब लोग खुश नहीं है देने के बावजूद भी। इन शॉर्ट, एक लाइन में सवाल पूछो तो गैप क्या है? व्हाट इज अ गैप इन योर इंडस्ट्री? आप सर्विस तो देते हैं, सब देते हैं, लेकिन एक गैप क्या है? सर्विस का एक बहुत बड़ा गैप है जिसके कारण कस्टमर अनहैप्पी रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ टेली, ओके, एक है। ओके, फैंटास्टिक, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मुझे, बढ़िया, वंडरफुल। फॉलो अप स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, यस, गैप के भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग है ना माल बेचने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं पर सर्विस देने में उससे कहीं ज्यादा पुअर होते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, हिरल मेहता जी मैम बोल रहे हैं। ओके, ये गैप है। क्रेडिट ऑफरिंग, ये गैप है। ओके, रोहित सिंह जी बोल रहे हैं, ये गैप है। ओके, अंडरस्टैंड? आपको आपकी इंडस्ट्री में लीड करना है तो आपको गैप फाइंड आउट करना है और उस पर काम करना है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमने हमारी इंडस्ट्री में फाइंड आउट किया, हमारी इंडस्ट्री में ना, हमारी इंडस्ट्री में भावेश गाले जी का रेगुलर अप्रोच, हमारी इंडस्ट्री में फॉलोअप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए हमारा जो 1 साल का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है उसमें हम कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते हैं, क्लाइंट से कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते हैं। बिकॉज कांस्टेंट कम्युनिकेशन के बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बिकॉज बहुत सारे हमारे पास, मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट है जो बहुत जगह से ट्रेनिंग करके आए हैं लेकिन आज मेरे साथ हैं। इनफैक्ट हमारे सीनियर ट्रेनर से भी ट्रेनिंग करके आए। ट्रेनर सारे अच्छे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना एक अलग चीज है और सिखाना एक अलग चीज है। हाउ मेनी अग्री? हाथ पकड़ के कूदाना एक अलग चीज है, ऐसा कूदा दिया कूद जाओ, हम आपके साथ हैं, वो भरोसा दिलाने वाला, वो स्टेप टू स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बहुत गैप है।
जो हमने फाइंड आउट किया और उस पर अभी मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं और उसको हम लोग करते हैं. ओके, तो प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द गैप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आपने जो गैप फाइंड आउट किया ना, उस पर काम करने की शुरुआत कर दीजिए. व्हाट इज द गैप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस इज अनदर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है. व्हाट बेनिफिट्स आर वी एक्चुअली डिलीवरिंग टू द कस्टमर? आप कौन से बेनिफिट कस्टमर को डिलीवर करते हैं आफ्टर गिविंग implementation is a problem. Okay, what benefits are we actually delivering? अच्छा, आपके प्रोडक्ट और सर्विस से क्या बेनिफिट होता है? अच्छा, अभी मैं अपना एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे. I do not sell course, I do not sell training, I sell transformation. मैं कंटेंट नहीं बेचता हूं भाई. गोल सेटिंग का कंटेंट ले लो, लीडरशिप का कंटेंट ले लो. मैं कंटेंट नहीं बेचता हूं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन बेचता हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? What benefit? Customer do not buy your product, customer buy what benefit they will get from your product. Yes or yes? If somebody telling me, do you sell training? No, I sell transformation. तो इसी तरह से आप लोग भी सर्विस देते हैं, तो आप क्या बेनिफिट देते हैं क्लाइंट को? कैन एनीबडी डिफाइन? क्या आप लिख सकते हैं कि आप क्या बेनिफिट देते हैं क्लाइंट को? अच्छा, ये अपने को पता होना चाहिए आप दे रहे हैं. We are not in the game of selling product or services. We are in the game of selling the benefits of the product. People do not. अच्छा, हम फैन हवे के लिए खरीदते हैं. Sleepless night. जय पारेख जी ने बोला कि हम अच्छे से sleepless night. Okay. Please give the answer. आप क्या benefit actually आपके प्रोडक्ट से? क्या benefit आप प्रोवाइड करते हैं? What benefit actually client is taking? Benefit ना real last outcome वाला benefit. टैक्स प्लानिंग. अच्छा, टैक्स प्लानिंग करके मिलता क्या है उनको? व्हाट दे गेट? प्लीज डिग अ डीप इनटू इट. इसमें थोड़ा और डीप में जाइए. आपको समझना है आप आउटकम क्या दे रहे हैं. पीपल बाइंग योर सर्विसेज फॉर व्हाट? वैल्यूएबल प्रोडक्ट. कॉन्फिडेंस. हाँ, नितिन जी ने कहा हम कॉन्फिडेंस देते हैं. हियर इज माय व्यू ऑन द बेनिफिट. एक्चुअली पर्सनल सर्विस, ऑनेस्ट रेट और ओपननेस, ई गेट गुड विजन मिलता है. रोहित सिंह जी कह रहे विजन मिलता है हम जो बेचते हैं उससे. ओके, ये अल्टीमेट. अच्छा, ये अल्टीमेट बेनिफिट सबको मालूम होना चाहिए. जैसे आज एप्पल फोन बेचता है, वो थोड़ी फोन बेच रहा है, वो स्टेटस बेच रहा है. हाउ मेनी अग्री? एप्पल डू नॉट सेल द फोन, एप्पल सेल द स्टेटस. अच्छा, एक बार राडो की घड़ी के ओनर जो थे, वो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे. रिपोर्टर ने उनको सवाल पूछा, अच्छा आपका घड़ी बेचने का बिजनेस है, आर यू इनटू सेलिंग वॉचेस? तो उन्होंने बड़ा प्यारा आंसर दिया, मैनेजिंग द बिजनेस. बहुत बड़ा प्यारा आंसर दिया. नहीं 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 नहीं, मतलब घड़ी नहीं बेचता मैं. बोला घड़ी बेचने का बिजनेस नहीं है मेरा बिजनेस है स्टेटस बेचने का. दूसरी घड़ी टाइम दिखाती है, मेरी घड़ी आदमी का टाइम दिखाती है. दूसरी नॉर्मल घड़ियां हैं वो टाइम दिखाती है, और मेरी घड़ी वो आदमी का टाइम दिखाती है. आई डू नॉट सेल वॉच, आई एम सेलिंग द स्टेटस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उनको पता है कि अंडरस्टैंड. देखो, ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है. शायद मेरे लिए 1 घंटा इस सब्जेक्ट पे मैं 6 घंटे बात करता हूँ. कॉन्सेप्ट है एक्चुअली आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हो आपको मालूम होना चाहिए. प्रोडक्ट से क्या आउटकम मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए. प्लीज आज आपका होमवर्क है, डीप कीजिए और बहुत अंदर तक जाइए. एक्चुअली क्लाइंट को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. प्रोडक्ट सेल, देखो प्रोडक्ट और सर्विस से उनको अल्टीमेट क्या फायदा होता है ना, वो आपका पिचिंग पॉइंट होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोग है ना प्रोडक्ट और आउटकम के बारे में बात नहीं करते. यस और यस, डोंट अबाउट प्रोडक्ट. Nobody is interested in product. Talk about what outcome they will get with the product. Talk about the outcome of the services with your product. Because understand, people are buying the outcome, not the product. Yes or yes? हम फैन हवे के लिए खरीदते हैं और एसी भी हम हवे के लिए खरीदते हैं. टीवी हम एंटरटेन के लिए खरीदते हैं. Are you getting my point? So it is very important कि what end benefit you are giving to the client, ये जानना और समझना. क्योंकि क्या है, देखो आप समझेंगे नहीं ना तो आपके सेल्स टॉक में आप फिर से प्रोडक्ट बेचने पे आ जाओगे. यू विल से प्रोडक्ट ओनली. नहीं हमारा ये है, हम ऐसे करके देंगे, हम ऐसे करके देंगे, हम ऐसे करके देंगे, हम ऐसे करके देंगे. वो सब ठीक है, बट व्हाट द बेनिफिट दे, एंड स्पेशली व्हाट बेनिफिट दे विल गेट विद यू. आप भी एक ब्रांड है ना. यस और यस,
हम सब अपने आप में एक ब्रांड है, आपसे एसोसिएट करके उनको क्या आउटकम मिलेगा वो आपके सेल्स स्टॉक में होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है, आप भी 100 में से एक लगेंगे, आप भी यूनिक नहीं लगेंगे। अगर आपको यूनिक लगना है तो आपको आपके यूनिक प्रपोजिशन दिखाने पड़ेंगे। इफ यू एसोसिएट विथ मी, इफ यू बाय, यस, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन प्रोसेस, एवरीबडी इंटरेस्टेड इन फाइनल रिजल्ट। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो ये आपको आउटकम मिलेगा। आप मानेंगे नहीं, एज अ ट्रेनर मैंने 5-6 लाख की ट्रेनिंग सेल की है, और आप मानेंगे नहीं मैंने ट्रेनिंग के पॉइंट के बारे में सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं की है। 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मेरे ट्रेनिंग के कंटेंट, बाकी 2 घंटा या 1.5 आवर्स में सिर्फ ये मैं पर्सनल कोचिंग किया करता था। आज तो सारे ग्रुप सेशंस होते हैं और हमारा वर्कशॉप होता है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि 1.5 से 2 घंटा आउटकम के बारे में बात करते हैं, और 15 मिनट ट्रेनिंग का कंटेंट आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो 15 मिनट का पीडीएफ डिस्कस कर लिया, दैट इज देन नो मोर डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट। फिर डिस्कस करो कि उसके रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसे इंपैक्ट करेंगे। यस सर, यस, हाउ द रिजल्ट विल इंपैक्ट इन देयर लाइफ, उनके बारे में बात करो। आउटकम से जो आउटकम मिलेगा उससे उनकी लाइफ, बिजनेस कैसे बदलेगा उसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए, और प्रोडक्ट तो सच बात करके निकल जाओ। लोग प्रोडक्ट में, अच्छा जब भी आप ज्यादा प्रोडक्ट की बातें करेंगे ना तो आप दूसरे में से एक लगेंगे, आप अलग नहीं दिख के आएंगे। अच्छा वो भी ऐसी बात कर रहा था, वो भी ऐसी बात कर रहा था, वो भी नॉर्मली एलआईसी एजेंट को देखा, एलआईसी एजेंट, मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छा नहीं मैं बहुत अच्छी सर्विस देता हूँ, नहीं मैं रात को भी आऊंगा प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए, नहीं हम हमको क्लेम सेटल कर। अरे भाई सब लोग यही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। यू आर साउंडिंग द ऑर्डिनरी, यू आर साउंडिंग 1 person in crowd. What outcome they will get? आपके साथ एसोसिएट होके या आपसे बाय करके फाइनल आउटकम क्या मिलेगा उसके बारे में बात करनी है, नहीं तो आप ऑर्डिनरी साउंड करेंगे। और हम हर जैसा साउंड करेंगे ना तो लोग क्या है ना, अच्छा अगर हम यूनिक साउंड नहीं करते तो फिर क्या होता है पता है, फिर क्या होता है पता है, प्राइस वॉर। कितने लोगों ने देखा है प्राइस वॉर, प्राइस वॉर। अरे पेलो तो 11,000 માં કરે છે, 9,000 માં કરો છો, તમે 12,500 માં કરો છો, पेलो 11,000, फिर लोग प्राइस वॉर में चले जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं होने चाहिए, बट अगर आप आपका यूनिक प्रपोजिशन नहीं दिखा पाए तो लोग प्राइस वॉर में चले जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई प्राइस वॉर हैपन? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। इवन आई डू दैट थिंग ऑफनली। मैं लोगों से कहता हूं, इफ यू वांट टू बाय अ कोर्स, देयर आर मेनी कोर्स, बट इफ यू वांट टू गो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ज्वाइन विथ मी। आई डू नॉट सेल ट्रेनिंग, आई डू नॉट सेल कोर्स। ना मैं ट्रेनिंग बेचने के बिजनेस में हूं, ना मैं कोर्स बेचने के बिजनेस में। आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये लैंग्वेज यूज करता हूँ। वेनेवर, इनफैक्ट इन माई सेमिनार आई नेवर सेल कंटेंट। हम कंटेंट नहीं, हम आउटकम बेचते हैं। तो कितने लोग मेरे साथ में, और कुछ लोगों को रियलाइज हुआ, प्लीज टाइप आर, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, this is a technical subject, but it is a very important to all of you guys. Okay, so how many are realizing? Please type R. Realization हो रहा है। Okay, so now what to do? Please dig out what benefit actually clienting. आप CA सर्विस देते हैं, टैक्स फाइलिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, जीटी संभालते हैं, तो उनको क्या फायदा होता है उसमें और डीप में जाइए, और डीप में जाइए। The more deeper, the more digger, the more better. Please go into absolutely unique self-promotion. एकदम डीप में जाइए और अपना एक स्पीच बनाइए कि आउटकम से उनको क्या फायदा होगा। Okay, can we have the next slide, ma'am, please? If it's end, अगर हो तो मुझे लगता है it's end. अच्छा, it's again one more slide. मैम मुझे वो स्लाइड दिखने वो, अच्छा नाउ इट्स अ फाइनल, अगेन इट्स नॉट अ स्लाइड, इट्स अ क्वेश्चन। नाउ व्हाट यू कैन और योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टू बिकम मोर कस्टमर सेंट्रिक। आप और आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक बनने के लिए क्या कर सकते हैं? प्लीज राइट डाउन, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। व्हाट यू और योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डू टू बिकम अ मोर कस्टमर सेंट्रिक। आप और आपकी कंपनी कस्टमर सेंट्रिक बनने के लिए क्या करेंगे, उसका एक्शन प्लान बनाओ। आज उसका आपको एक्शन प्लान बनाना है। एंड माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज याद रखो, जब भी आप कोई प्लानिंग बनाते हो, जब भी कोई आप एक्शन बनाते हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप एक्शन प्लान बनाते हो तो उसका एक्शन डेट भी लिखना है, बिकॉज नहीं तो प्लानिंग खाली प्लानिंग रह जाती है। हाउ मेनी एग्री?
प्लानिंग खाली प्लानिंग रह जाती है if there is no action date. Whenever you create a plan, there has to be action date beside the plan. ये action point है, 10 things we will do it for client, और ये हम करेंगे. Are you getting my point? Always give a action date, नहीं तो ये प्लान खाली पेपर पे रहते. दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, whenever you are coming up with any plan for a customer, वापिस मैं कहूंगा, मैंने 2 दिन पहले कहा था, do not fall in trap of perfection. चालू करो, कुछ भी आपको लगता है क्लाइंट के लिए करना है, चालू करो. हम परफेक्ट होने के बाद देंगे वो जरूरी नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जब मार्केट में उतारेंगे, वो सर्विस देंगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक होएगा, क्लाइंट फीडबैक का, तो उससे आप इंप्रूव कर जाएंगे. डू नॉट फॉल इन ट्रैप विद द परफेक्शन. बहुत सारे लोग कस्टमर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ रहता है पता है? दिमाग में, एग्जीक्यूशन में आता ही नहीं है. बिकॉज हम डर रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं. अरे यार कस्टमर को ये और अच्छा नहीं लगा तो, ये नहीं हुआ तो, अरे उन लोग फायर बैक हो गया तो वो लोग क्या सोचेंगे. अंडरस्टैंड, जब भी आप कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं ना, इवन इफ आप फेल भी हो गए ना, तो भी आपका कस्टमर एटलीस्ट आपके एफर्ट्स को है ना, वो ऑलवेज सल्यूट करेगा. हाउ मेनी अग्री? अगर अग्री नहीं करते तो मैं जबरदस्त पॉइंट इसके बाद देने वाला हूँ. मेरे क्लाइंट है, लॉयर, उनका नाम है मूर्ति आचार्य, जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ. शिवड़ी के कोर्ट है, उनके प्रेसिडेंट बार के वो प्रेसिडेंट है. मतलब शिवड़ी कोर्ट का कुछ 15-20 लोगों का ग्रुप है, और उनके वो प्रेसिडेंट है. तो मैंने को एक बार क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला आप केस हारते क्लाइंट कुछ बोलते नहीं है? तो उन्होंने बहुत बड़ा आंसर दिया, जो मेरे लिए आई ओपनर था. नहीं मुकुंद भाई, वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग लड़ना, तो लोग हमारा एफर्ट देख सकते हैं. तो अगर हमने एफर्ट डाला रहेगा ना, तो क्लाइंट हमको बोलता नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा अच्छा आंसर था. अगर आप आपके क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, और गॉड फॉरबिड वो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए कुछ थोड़ा सा गुफ अप हो भी गया, तो भी क्लाइंट इतना तो समझ रहा है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं. So do not fall in trap of the perfection, just doing it. Okay? So this question you need to ask with your team. ये question आपको आपके और आपके टीम के पूछना है. What you can or your organization can do to become a more customer centric. Action plan लिखना है, dates लिखनी है, और perfection के trap के बिना चालू करना है. Okay? So is there next slide, वंदना मैम? क्योंकि okay, हो गया. Okay, so we are done. So it was the last slide and we are done with the session. I hope you got the value. ये आज का टेक्निकल सेशन, तो मैं वापस इसको रिकैप कर दूंगा. It is understand, it is very very important to be customer centric. Number 1, if you are being customer centric, Amazon के ओनर ने कहा है, don't fall in client centric. Yes, मैं देख रहा था कितने लोगों ने समझा ये. I was just doubting, वंदना मैम you got it right, client centric. मैं ये देखना चाहता था कितने लोग सुन रहे. वंदना मैम, your observing power, your understanding and application is very fast. Absolutely, being a client centric, client बोलेंगे. दूसरी चीज है, you always need to think from the client perspective कि आप इंडस्ट्री में गैप क्या. अच्छा, अगर आपको विन करना है ना, आपको जीतना है. ओयो ने क्या देखा था? ओयो कैसे शुरू हुआ? ओयो के ओनर रितेश अग्रवाल एक छोटे लड़के, ऑब्वियसली रितेश की उम्र 20 साल की थी, और उनको एक एंटरप्रेन्योर बनना था. जब भी स्कूल में उनको खड़ा किया जाता, पूछा जब बनना है क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है. तो ओयो के जो ओनर थे, वो काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करते रहते थे. तो क्या होता था, जब भी वो कोई मीटिंग में जाते थे, कोई स्टार्टअप मीटिंग या कोई जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं, तो मीटिंग जाते हैं कोई दूसरी सिटी में, तो रूम लेना पड़ता था. और जब भी रूम लेते थे ना, तो इतना भंगार सर्विस, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इतना सारा पैसा होता नहीं है, तो रूम लेते रहे, इतना भंगार सर्विस रहता था, इतना मतलब स्टिंग करता था रूम, और ये सारी चीजें होती थी. तो उनको पसंद नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. तो उन्होंने वो गैप को कंप्लीट करने के लिए ओयो खड़ा कर दिया. सेम केस विद भाविश. अगर भाविश जी के साथ है, ओला कंपनी के ओनर, एक व्यक्ति ने उनको बहुत घुमाया 400 रुपए में, जो 200 रुपए का था. वो गैप देखा, वो गैप को फुलफिल करने के लिए ओला बन गया. सेम स्टोरी विद यूट्यूब के जो फाउंडर है, ओरिजिनल फाउंडर, बाद में तो गूगल ने ले लिया, यूट्यूब के ओरिजिनल फाउंडर अपने वीडियो अपने फ्रेंड को भेजना चाहते थे.
अपने फ्रेंड को भेजना चाहते थे लेकिन भेज नहीं पा रहे थे, काफी लंबा वीडियो था 30 मिनट का, और वहां से शुरुआत हो गई यूट्यूब की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां देखो, हमारे मुकेश भाई ने भी यही किया है, गैप ढूंढा, 1 GB 250 एयरटेल वाले बहुत छाप रहे थे, गैप ढूंढा, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। आज पान वाला भी इंटरनेट पे पूछता है, मेरा ड्राइवर पूछता है हाँ ये लोकेशन कहाँ है, तो फटाफट दिखाने लगता है। तो मुकेश भाई ने गैप ढूंढा, क्या गैप ढूंढा कि ये जो है, जो ये लोग, गैप क्या था कि लोग इंटरनेट एक्सेस फ्रीली नहीं कर पा रहे थे, गैप था। यस यस, मुकेश भाई भी ढूंढा, मुकेश भाई ने भी ढूंढा, वो गैप को फुलफिल करने के लिए उन्होंने काम किया, और देखो ये क्या बन गया। सिमिलरली विद पेटीएम, पेटीएम इजीली आज पान वाले के पास जाओ, पेटीएम कुछ नहीं लेके नहीं आया, उन्होंने देखा कि पेमेंट करने में लोगों को दिक्कत होती है, वो गैप को पूरा करने के लिए वो पेटीएम को लेके आ गए। तो देयर आर मेनी 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 फेडेक्स, डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट में आपके घर पे पहुंचाएंगे, यूनिक बन गए, गैप ढूंढा, बड़ा टाइम लगता था। तो अंडरस्टैंड, ऐसे में 100 एग्जांपल दे सकता हूं। आपने प्रॉपर गैप फाइंड आउट कर लिया, आप राजा बन जाएंगे। हेलो, प्रॉपर गैप फाइंड आउट कर लिया, आने वाले 4 साल में कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये मैटर नहीं करता पहले है या लास्ट है, ये मैटर करता है जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे सोसाइटी का, उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। हाउ मेनी अग्री? जितना बड़ा प्रॉब्लम और जितने ज्यादा लोगों का आप सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हाउ मेनी अग्री विथ मी? तो ये सारे, ये जो जितने भी बड़े बिजनेस है ना, जितने सारे $1 बिलियन बिजनेस है ना, वो चालू हुए ढूंढ के। अच्छा, मैं एक सिंपल अभी एक वैक्फिट करके फाइनल केस स्टडी लेके मैं इसको एंड करना चाहूंगा। वैक्फिट, अभी वैक्फिट मैट्रेस की कंपनी है, मैं कल उसके बारे में स्टडी कर रहा था रात को, चालू हुई है 2016 में। कितना? 2016 में। पता है कितना है? 170 करोड़। एक ट्रेडिशनल धंधे वाले के सारे बाल चले जाते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल जिनके चले गए हैं, मेरे भी थोड़े चले गए हैं, ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन 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 निमेश भाई भी कर दिखा रहे, कोई बात नहीं, निमेश भाई मेरे भी गए, टेंशन मत करो। ट्रेडिशनल धंधे वाले को 170 टर्नओवर करने के लिए पूरा 3 जनरेशन लग जाएगा। वैक्फिट मैट्रेस की कंपनी है। अच्छा, क्या हुआ था? आइडिया सुनिए, ये दोनों IITian है, हॉस्टल में रहते थे, मैट्रेस खरीदा, पर क्या हुआ, महंगा मैट्रेस दिया, अच्छा मैट्रेस नहीं दिया, और सर्विस तो दिया ही नहीं अच्छा। तो ये लोगों ने बोला कि यार हमें अच्छी नींद नहीं मिली और सर्विस बेकार। गैप को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद मैट्रेस के साथ आए। आज वैक्फिट 170 करोड़ का माल बेचता है। वैक्फिट को 63 करोड़ का फंडिंग मिला है, और इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिकने वाली मैट्रेस है। 2016 में 2 लड़कों ने चालू किया था, में 170 करोड़ टर्नओवर है। गुड और वेरी गुड, गुड और वेरी गुड। 170 करोड़ टर्नओवर है, 170 करोड़। चालू हुआ 2016 में, और यहाँ मैं एंटरप्रेन्योर को बोलूं 5 का 10 करोड़ करना है, नहीं नहीं नहीं, कैसे 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 हो सकता है? नहीं, और डबल डबल मतलब रियलिटी में सर, प्रैक्टिकल बात हो। तो ये क्या प्रैक्टिकल नहीं है? ये क्या हवे में बात कर रहा हूं मैं? आप स्टडी करना वैक्फिट के बारे में, 2 IITian। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लड़कों की उम्र 28, 29, 30 साल की उम्र के लड़के लोग हैं। उन्होंने गैप ढूंढा और उस गैप को पूरा करने के लिए काम किया। तो अगर आप इंडस्ट्री में लीड करना चाहते हैं, हमने भी वो गैप फाइंड आउट किया। हमने क्या गैप फाइंड आउट किया? ये लोग इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला ये। दूसरा, लोग कॉर्पोरेट बनाने का मकसद नहीं, और मैं मिला के एक मिशन लिया कि हम एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं, यूनिक हो जाएंगे धीरे धीरे। वी विल हेल्प SME टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू कॉर्पोरेट। मैं और मेरी कंपनी पूरी तैयार है आपको SME से कॉर्पोरेट बनाने के लिए। इसका मतलब हम 5 साल चलेंगे। मेरा 1 साल का भी प्रोग्राम है, लेकिन हम आपके साथ लगातार चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आपको कॉर्पोरेट बनाना है। तो हमने एक मिशन लिया कि ग्रोथ तो सारे बिजनेस कोच करा रहे हैं, हम कॉर्पोरेट बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट अस टेक अ न्यू टारगेट कि हम SME को कॉर्पोरेट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। So that's it for today. I hope you have got the great knowledge about it. Yes. Sir, we have waiting list. Jayesh Bhai and Bhavin Mehta and Shailesh Oja
everyone wanted to speak something about, because today that 7 days bond is going to end. The way you said, I'm also feeling. Okay, so let's see in the we have Nitin Majid here. So for Rotary also you can arrange this meeting of Mukund sir. It's a really value addition. He has done for Lions Club for 7 days in row this kind of series. So Rotary can think on that line. And otherwise also, see, in principle, understanding new things coming is always important. Roni sir, you want to say something? Thank you very much, Vandana ma'am. Unfortunately, I missed all these, and when I came today, I got a real miracle with Mukund bhai. He did a very good job. It takes me to my training when I worked with Max New York Life in 2002. And I had a trainer by the name of, I forget his name now, Deepan Vaishnav, one of the best trainers. And he taught me the power of 10 by 10. So what is 10 by 10? Every morning before 10 a.m., talk to 10 new people, introduce yourself in your company. So that I do it till today. I do it till today. Thank you very much. I would love to have a recording of these sessions. Thank you, Vandana man. Thank you, sir. Thank you. Bhavin, you have written some commentary. Would you like to speak? Yes, really narrated well. The crisp of the whole 7-day series, basically. Thank you. I'm just trying to get it from the past chat. And people are engaged. See, more important, any speaker is a favorite of public when you keep them engaged. That's more important. So Mukund Sar's energy was excellent. The deliverables are excellent, and then implementation part we cannot forget. Bhavesh Purohit sir has written, "Sir, you are a best motivator. I have learned so many things in 6 days. I have applied that in my field, which is marketing, and I learned how to make decisions and go ahead for your goal. Thanks, sir. I implement in my personality." So his personality transformed. So he has started practicing it. And Sagufta, will you like to add on something? Is she there, Sagufta? Jayesh Parikh wanted to speak, right? At the end, he will be speaking. Bhavin Mehta, all the sessions were absolutely amazing and energetic. Very important. My takeaways were few great punchlines like 10% of your income should be invested in learning. Learning should be bigger than experience. And what you possess you. So leaders. That's my favorite line. That's my I owe it. And leaders don't need a position. That's what Bhavin Mehta is sharing. Absolutely. You can lead from anybody. Yeah. Jayesh bhai, are you there? Jayesh Parikh, he wanted to speak. Even there are so many friends of mine who are attending, and I feel happy, I could do some value addition to their life as an instrumental. Thank you. It has been pleasure. It has been pleasure, and thank you so much. I appreciate. Yes. Bhavesh Gala, our client, is also attending. Romi is our client event manager, and Romi sir wants to add something. You can go ahead. Yeah, as Mukund bhai was talking about the startups and the funding and all that, what reminded me is the very fact that we're looking at ourselves on Zoom. I believe, correct me if I'm wrong, after lockdown, their valuation went to $42 million. Is that right? Yeah. Absolutely. We have studied. Absolutely. You're right. Yes. And there is a reputation filed. In fact, I started giving online training only after lockdown. Until now, we're in 700 people. It's very important. Thank you. So there is a fight going on for this app also, but at the end of the day, it has made us. Mr. Praful has also narrated. He's also very good motivator. Unka passion or energy level unko acha laga hai, and he wants to know the secret of the same. And in short, 1 hour of session. Yes. You have shared such a wonderful knowledge in 1 hour session. We heard that what he said, na, कि by reading the books you will get this information. Secret of energy का राज क्या है वो बता दीजिए sir. वही बता रहा हूँ. Secret of my
this is two thing. I really love what I do because I'm absolutely, मैं बड़े पैशन से काम करता हूँ. पहले तो मैं काम करता ही नहीं हूँ. मैंने 2011 में जब जॉब छोड़ी थी उसी दिन मैंने काम करना बंद कर दिया था. तब से मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ. I have left working in 2011. From तब से मैं एंजॉय कर रहा हूँ. नंबर ये. और नंबर सेकंड, I have a very big dreams in my life, and I think your dreams are an invisible force which drives you. If you do not have a big dreams, then drive not. So I think dreams are your invisible force, and invisible force drives you like anything. So you have to have an invisible force in your life, and that's what drives me. So that's two secret of my life. Probably energy what I get in, because I am say अभी मेरे सामने vision board है, मुझे जू का अगर लेना है तो wherever I go, you know, I have this in my mind, and then again आगे फिर आगे मरने के 1 मिनट पहले तक गोल सेट करके मरना, ये बात है. राकेश अग्रवाल जी, want to add something? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने जो ऑफर्स दिए थे परसों से, वो आप हमें वापस एक बार वो ऑफर अवेलेबल कराएं. ओके. जो सेशन थे ना आपके, आपने जो 7000 के रखे थे, तो आपने बोला 1 घंटे में, और फिर कल आपने कुछ ऑफर्स रखे थे. तो आई वांट यू कि यू कीप दैट अगेन, क्योंकि क्या होता है कि सबको डिसीजन लेने में लेट होता है. अभी आपकी तरह हम लोग सब फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं सर. So I want that कि you continue with that offer till, मतलब आज अगर आप करवा सकते हो तो that's my request. और एक चीज कहना चाहूंगा सर, आज का सेशन सही में बहुत पावर पैक सेशन था, और आपके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि हर जगह इत्र ही नहीं महका करते जनाब. इत्र मीन्स परफ्यूम. हर जगह इत्र ही महका करते जनाब. कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है. तो सर आप वही शख्सियत हो आप, कि आपने सही में सबको इतनी खुशबू दी है, इतना नॉलेज दिया है. इट इज रियली ए ग्रेट सेशन. बहुत मजा आया सर. और मैं चाहूंगा कि आप वो ऑफर जो भी अटेंड कर रहे हैं आज के लिए वापस आप वो करें, क्योंकि आज लास्ट सेशन. वंदना मैम, See, जो practically see what is mattering is that they are inclined to do something. So that will make transformation in their life. And what has happened, the one underlying word what Rakesh said is that everybody is not decision maker. उन्होंने सोचा and तभी वो नहीं ले पाए, तो वो उनकी बस मिस हो गई है. तो अभी आप कंसिडर कर सकते हो, because they are loyal, बोलते ना, loyal participants to webinar. That's what I feel from my side. कि एटलीस्ट आज जिसने अटेंड किया उनको आज रात तक का दे दो, 11 साढ़े 11 तक अगर लिंक भेज देते हैं तो आई थिंक राकेश दैट शुड बी फाइन विद अस, राइट? यस मैडम. अगर वो ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई किसी का एक और हो सकता है कि कोई आज नहीं कर सकता, लेकिन लास्ट टू लास्ट कल दोपहर 12 बजे तक किसी को आप टाइम देना चाहिए. बस इतना मैं कहूंगा. क्योंकि हमारा क्या होता है, ऑफिस बंद हो जाता है तो सर्टेन थिंग्स टेक्स केयर टुमारो. राकेश जी, आई अप्रिशिएट कि आप मेरे साथ आना चाहते हैं, और वंदना मैम ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और आपने इतनी डीप डिसाइड नहीं तो हमने कभी भी एक बार हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो हम लोग कभी, मैंने वंदना मैम को भी बोल दिया था, वी डू नॉट गो बैक. बट इन दिस केस राकेश जी, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ आना चाहते हैं, तो वंदना मैम ने भी रिक्वेस्ट किया है कि एक मौका मिलना चाहिए. तो डेफिनेटली कल सुबह 11 बजे तक का मौका मैं आप सबको दे देता हूँ. नहीं तो मैं नहीं कर रहा था. हाँ, I know. In fact, हाँ, he told me that, and the very first day also we had told कि we are not coming here for marketing anything. See, आज आपने 6-7 दिन हो गए, हमने VMP investment के बारे में, see, VMP investment अपनी जगह पे ही है. People know, so definitely they will be approaching them if they want the services from them. As simple as that. बट हमें सुकून मिला है कि एटलीस्ट वी कुड गेट मुकुंद इन सिनर्जी, एंड उसके थ्रू हम कितने सारे लोगों को हेल्प कर पाएंगे. और ये वीडियोस विल आल्सो टाइम एंड अगेन पीपल विल वॉच, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्यूट. तो अगर मैं वो लिंक भेज देता हूँ, हाउ मेनी पीपल नो द कोर्स, अगर जानना चाहे तो मैं एक बार आज काफी नए लोग हैं सर, आप खाली बता सकते हो. But before that, जयेश पारिक को मैंने अनम्यूट किया था. Let him finish so that. राकेश जी लाइन पे. राकेश जी, राकेश अग्रवाल जी. यस सर. आप लाइन पे रहना, मैं सबको लिंक देता हूँ और मैं बार ऑफिस से समझा देता हूँ. क्या बोलते हैं वंदना मैम? 5 मिनट में फटाफट से समझा. हाँ सर. एक ही प्रॉब्लम, ये थोड़ा मेरे को समझना था आपसे
कि जो एम्प्लॉइज लोगों के लिए आप जो बोनस देने वाले सेशन वो भी सेम टाइम में तो कैसे होगा? वो थोड़ा सा वो मेरे को आपका भी सेशन चालू होगा और जो आप एम्प्लॉइज लोगों के लिए जो देंगे वो भी सेम टाइम है, तो वो डिफरेंट टाइम हो सकता है क्या? नहीं, वो एक्चुअली वो ख्याति लेने वाली है, टाइम डिसाइडेड हो चुके हैं बिकॉज क्लाइंट्स को टाइम जा चुके हैं, तो जितने भी लोग बैच में हैं तो उन सब टाइम जा चुके हैं, तो वो जो वो ट्रेनिंग है वो हमारे स्टाफ लीड ट्रेनर ख्याति शाह हैं और एकर्स के लिए कर चुकी है, अभी 150 करोड़ की कंपनी के लिए की है, रमाड़ा के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। शी इज अ वेरी वेरी गुड एट दिस, एब्सोल्युटली। तो टाइमिंग सर चेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि दिस इज द टाइमिंग, आपको 6 दिन तो है एक्चुअली, तो हमने 5 से 6:30 का टाइम रखा है, आपके एंगेज कीजिए, बट मेरा प्रॉमिस है आपके स्टाफ को बहुत वैल्यू मिलेगा, तो टाइम कैन नॉट बी चेंज राकेश जी, वो उसमें मैं आपकी जरा हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइमिंग हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू पीपल। तो मतलब हम आपके साथ अटैच रहेंगे और उनके साथ नहीं अटैच कर पाएंगे? No, I beg to differ, Rakesh. What you do, one senior team leader ना आपका, वो उधर रहेगा ही, so he has not given the limit. आपके जो अगर 3 एम्प्लॉई 4 है या 5, उन सबको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, so that is a bonus, actually speaking bonus, and that also inspired me also to take decision to join, and this is 50,000 course, understand, 50,000 का कोर्स है जो हमें वो 7,000 में ऑफर कर रहे हैं। Yes, definitely we consider that कि इतना सर कर रहे हैं हमारे लिए, that is really appreciable सर। और उसमें क्या आपके स्टाफ और दूसरे सबके एक साथ होंगे, लेकिन जब ख्याति मैम ट्रेनिंग देती है ना, अभी भी हमारे 1 साल का कोर्स चालू है, आप जब एक सेशन के बाद आप इफेक्ट देखेंगे, तभी तो हम रमाड़ा एक बड़े बड़े ब्रांड के लिए कर रहे हैं, अभी मैं नहीं करता, वो ख्याति मैम करते हैं, बट शी गेट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल। जैसे मेरा एंटरप्रेन्योर के साथ मास्टरी है, वैसे ख्याति मैम का स्टाफ के साथ, बोलते हैं ना कोर एरिया है उनका, शी इज वेरी गुड एट दिस, शी इज बोर्न टू गिव दिस, ऐसा है, जब वो स्टाफ ट्रेनिंग देंगे तो आपको पता चलेगा, नो डाउट हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, उसका एक रिकॉर्डिंग आप देख पाओ ख्याति मैम का। That's what I was thinking कि जो स्टाफ ने सीखा ना वो हमारे पास भी थोड़ा होना चाहिए, तो स्टाफ क्या बोल रहा है वो हम जेल कर पाए। सर आप अपना वो आप ये बता दीजिए, वो सब पूरी डिटेल्स बता दीजिए, तो क्या लोग बाकी लोग भी हैं तो उनको भी जरा। थैंक यू ना मैम, और मैं अगर किसी को कुछ बोलना है तो भी मैं अपना नितिन भाई તમારે કઈ શેર કરવું છે? Our past president Rotary Club, Nitin Majitya, he is a chartered accountant. Nitin bhai? Yes, actually thank you Vanda for always communicating every day to me, but unfortunately I could not attend earlier session, so thank you so much, and thank you for sending the video recording of earlier sessions also. Yeah, Rotary Club, what you said is correct actually, and definitely you can talk to the president also. I will also talk to the president of Rotary Club of Borivali, so we can have at least one meeting actually where sir can come and he can definitely, I mean, if he comes, definitely it will be like we would be rather happy to see him in our club actually. Now about this particular session, I can say yes, I mean fabulous session, I really liked it. I like his energy actually, and $1 billion advice, what he said is once you do something for the customer will do something for you actually. How can I add value in my customer's life today? So very, very inspiring talk, and thank you so much, sir, and you for inviting me in this session. Thank you. My pleasure. Thank you, sir. Jayesh Parikh sir. So once again Jayesh Parikh sir. Once again I am presenting my course. Yes, please. Jayesh bhai, will you like to speak? नहीं तो પછી અમે આગળ વધીએ. Okay, Jayesh bhai is not available. Hello. Now he's available. Sorry. Tell me. Okay, fine. Vanda ma'am. हाँ बोलो ना sir. Yeah. First of all, I really thank you. Hello. First of all, hello. हाँ बोलो संभळाय છે. Yeah, fine. First of all, I thank you very much for arranging this leadership program for the chartered accountant and close group of your members basically. Now, Mukund Chauhan sir, I want to tell you something. Within the last 7 days, I have attended your 13 sessions, sir. Are you agree, sir? Sir, gone.
Mukund sir gone. Mukund sir gone. Yes, I'm here only. Tell me. Yes, Yes, Mukund sir. yes. But I want to tell you, last 7 days, I have attended 13 session of you. Okay. Yeah. Okay. 7 is the So I did- recorded. 7 is the recorded session, and Okay. no, 6 is 7 is the live session. 6 is the recorded session. During your Thank you. live session, generally what I do, I will just go through your audio and video session. But in a Okay. case of the recorded session, I will process the information you have given me. That I can do it Wow. in a silent fashion. So when you give a lecture, it is not possible. Okay, we can switch on our processors, mind processors. But at the recorded Absolutely. session, it will be possible, sir. So that's I want to tell Hats you. off. Yeah, correct, sir. Hats off, hats off. What I want to tell you, I really agree with your thought process and your lectures also. Say at the two Thank you. places I am somewhat differing. That I just want to tell you. Okay, one thing you have told me, okay, we require the perfection of the 50%. In that case, I want to tell you either a professional or a manufacturer or trader. Perfection is required for the 100%. Okay, I will tell you. Allow me to complete. In the case Yes, of yes, the yes. manufacturer or trader, say in case of the manufacturer, basically they will deliver the product when they are 100% perfect. But in that case, they have the inclination to correct their product if something find out a missing or something is wrong. So that is only Absolutely. things I want to tell you. Correct. So वहाँ- perfection in yes, every वहाँ line. पे yes, वहाँ पे मैं that's the reason वो कौन से कॉन्टेस्ट में मैंने बोला है, that's what I am saying कि 50% it means whenever आप पहली बार प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, I am just saying for the first time, whenever जैसे बेबी वॉक करना सीखता है तो पहली बार वो परफेक्ट नहीं होता है. जब मैंने 2013 में पहला स्पीच दिया था, सो आई मीन टू से दैट 50% कब, जब पहली बार कर रहे हैं, पहला डंबल, पहला एक्सरसाइज 100% नहीं होगा, लेकिन जब आप पहली बार वो करोगे तो 50% होगा, फिर इंप्रूव करोगे 60, 70. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. That's what my contest was. Correct. In that case, I want to tell you, sir, in case of the client, once they will keep the confidence on the person or the person who delivers, whatever the impression they have for the first time, it will be going to be last for the ever. Absolutely. So in that absolutely. case, if you are not satisfying by way of 50%, then they will turn out. They will not see you back. That was only things I want to tell you. You are right in your approach. Now the another things I want to tell you, sir. You have told me the professional and basically regarding your brother-in-law, he was interested in the cricket, correct? But he had joined the MBA. But what is the main thing? What is your brother-in-law is saying, or anybody see? Okay, if by taking any profession, whether he is going to have a regular flow of income or not, because everybody has to give a car to his employee or to his wife or to their children. If the regular flow of income is not there, then it is very difficult. Say if you see Mount Everest is a very tall structure, but if you go to the top, we can see only the two area is there. It does not have the more area. So if we go in the cricket and we will go to the top, but very few people will reach to the top. So that was the main problem. So people are easily feel, okay, where I will get my regular flow of income. That is the main thing. So only at the 2 points I am differing. Otherwise, I agree with all of your points, sir. We are running short of time, Jay. No problem. I agree. You have given me more time. Yes, sir. Thank you. Yes, thank you. No problem. Thank you. No So, problem. Yeah. No. Thank you so much, Jayashree. Thank you so much. So, can I run the course now for 5 minutes? Ma'am, can you allow me to share the Just a screen? second. We have a Rohit Singhi. Would you like to add something, Rohit? Rohit is also entrepreneur, and Okay. I think he will have some add-ons. Rohit, are you there? Yeah, today was my first session, and Mukund sir was like very much in very simple language. He made us understand that very simple language. He made us understand all the concepts, and it was very good. Now I will attend all his other 6 lectures through what you have given. So now I will attend everything, and what I missed today was the other 6. I will learn it today. But it was fantastic. He has a very simple and systematic approach to make us understand
the basics and the basic fundas of business and how to go on. And basically, I have been attending many of the motivational lectures, but his language to make us understand and in simple language, it was very good. So connect was faster. Connect was faster. Because sometimes what happen, you attend the lecture and the presentation is so high that it crosses my mind. It doesn't get it. But then here the examples and everything was so systematically given, and the language, and it was so perfect for me to understand that he is good in his work, and at least I can connect very fast with, there are many things which you take that he is right in this way, but sometimes what happens, the सामने वाला आदमी जब अच्छे से समझाता है, तो then you connect it very fast. Yes. So in that way, Absolutely. is very good approach. And now I'll go to all the 6 sessions and that's something really fantastic. So now Rohit, you must hear what sir is going to share now. Yeah, I'm here. I'm here. Yes, अभी give me राकेश जी. Yes, राकेश जी ने मोबाइल नंबर मांगा है. अच्छा, मैं पहले तो just give me 5 minutes. बैक टू ट्रैक प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ. ओके, मैं फर्स्ट क्या करूँ, लिंक शेयर करूँ पेमेंट का, कि मैं कोड शेयर करूँ? व्हाट यू से वंदना मैम? व्हाट यू से? आवाज नहीं आ रहा मैम. एक सेकंड, सॉरी, वो म्यूट करी ना कुछ, so that people don't get interruption, and this is a recording ना, that's why. ओके, मैं कोड शेयर करता हूँ फटाफट 5 मिनट में और लिंक दे दूंगा. ठीक है, गिव मी जस्ट 5 मिनट, आई विल शेयर माय प्रोग्राम रियली फास्ट. जस्ट गिव मी 5 मिनट. सर, I have made some PPT this for you. I'm sharing my screen for you. So बैक टू ट्रैक में शेयर करूं यहाँ से, मेरे यहाँ से? नहीं, मेरे पास है, मैंने बना के रखा था. I was knowing this. Yes. कि मेरे दिमाग में होता है ये सब आइडियाज, कि उस दिन मैंने ट्राई किया था. शेयर स्क्रीन, आप मुझे शेयर स्क्रीन दीजिए सर. मैं आपको होस्ट बना देता हूँ. चलो. हाँ सर, हाँ प्लीज. Yes. What I want, host disabled participant disabled है अभी तक, enable नहीं. I have made you host, ma'am. Participant screen sharing is disabled. मैं होस्ट हूँ नहीं ना सर. ये आप होस्ट है वंदना मैम? नहीं, आप मेरे दूसरे वंदना को. हाँ. रोटेरियन. अच्छा, दूसरे वंदना को करना है. ओके. क्लेम करके ले लेते. रोटेरियन. समझ गया. अभी मैं वापस होस्ट हो गया और आपको रोटेरियन को मैंने होस्ट बना दिया. चलो मैम. ओके गाइस, गिव मी 5 मिनट्स. दिस इज हाउ इट. सर, मैंने ये बनाया है. बैक टू ट्रैक is a 6-day mastery setup challenge for entrepreneurs, which will start from 8th of June, that is next Monday. It will go from 5 to 6:30, and first day we are taking core purpose alignment. This is for entrepreneurs, understand. Emotional quotient balance on the next day. Leadership mastery. मैं शेयर कर दूं. Sales mastery. Listen. Sales mastery. How to take out efficiency of employees and how to come out from current financial crunch. This is a 50,000, and after that bumper bonus now sir will share with you. Mukund sir. Okay. So go ahead. Once again I will share 6. मैम वापस से फर्स्ट स्क्रीन लाएंगे. फर्स्ट स्क्रीन पहला वाला मैं वापस से रिपीट कर दूंगा 2 मिनट. अच्छा, आई एम गोइंग टू शेयर 6 वंडरफुल टॉपिक विथ यू गाइस. कोर पर्पस ऑफ अलाइनमेंट, कि आपका कोर पर्पस कैसे डिफाइन करना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू नो द कोर पर्पस. दूसरा है इमोशनल क्वेश्चन बैलेंस, हाउ टू कीप योरसेल्फ इमोशनली बैलेंस व्हेन एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस कम. तो मैं आपका कोर पर्पस आइडेंटिफाई कराऊंगा. आई विल गिव यू पीडीएफ एंड टूल्स. Second, how you can keep yourself so high no matter what challenges come. Third, I will going to talk about leadership, how you can develop your leadership and PDF, and what to do in your organization to create a leadership. Fourth, 5 techniques to sell to your team, to your customer, to your investor. 5 powerful techniques to increase your sales. To investor, किसी को भी आप pitch कर सकते हैं. 5 powerful techniques. Then to take out efficiency of employees. आपकी टीम से बेस्ट कैसे ले सकते, how to come out of a financial crunch. ये 6 टॉपिक में लेने वाला हूँ 1.5 घंटे के लिए. These are the 6 topics. मैम, can we share the next slide? Can you share the next slide? Yes. Next slide है 2 पर्सनल मेरे सेशन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं 40 मिनट्स के. I will talk to you personally. ये बोनस है. उसके साथ आपको मिल रहे हैं 6
6 सेशन, कैन यू जूम प्लीज? 6 सेशन स्टाफ के मिल रहे हैं. फर्स्ट सेशन इज ऑल अकाउंटेबिलिटी. फर्स्ट सेशन स्टाफ को मिलेगा हाउ टू बी अकाउंटेबल, मतलब आपका स्टाफ कैसे अकाउंटेबल रहेगा उसकी ट्रेनिंग मिलेगी. दूसरी है वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट इन द टीम, वो उन सीखेंगे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो सीखेंगे. फिर आपकी टीम खुद का ग्रोथ करने के लिए क्या क्या एक्शन ले वो हमारे ट्रेनर सिखाएंगे कि what kind of action your team should take to grow themselves within the organization. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. नॉर्मली क्या होता है कि बॉस के पास सारे प्रॉब्लम भर के लेके आते हैं, तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपके एम्प्लॉय खुद ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने लगे. और मेक ऑफ कंसिस्टेंसी, ये 6 टॉपिक है जो आपके स्टाफ को मिलेंगे, विच विल बी कंडक्टेड बाय आवर लीड ट्रेनर ख्याति शाह, वो कंडक्ट करेंगे. तो 6 मेरे सेशन होंगे अलग अलग टॉपिक पे, 6 मेरे सेशन, 2 मेरे पर्सनल सेशन, 6 स्टाफ के सेशन. ये सारा कंबाइंड प्राइस है 50,000. बट टुडे आई एम गिविंग विद द रिक्वेस्ट ऑफ वंदना मैम, टुडे आई एम गिविंग इट फॉर ओनली एंड ओनली 7,000 रुपीज. 7,000 रुपीज एंड प्राइस रिमेन. कल 11 बजे तक की प्राइसिंग रहेगी, बट कल का वेट मत करो, आज आप कर दो. मैं आपको लिंक भेजता हूं एंड यू कैन कम विद अस. एंड ये पूरा 50,000 का कोर्स आई एम जस्ट गिविंग इन 7,000 रुपीज. नाउ आई एम शेयरिंग. द पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं. पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. पेमेंट करके मेरे नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं. Yeah, what I'll suggest, I'll request Vikash to also mail it up because this is open. So yes, why not? मैं भी शेयर कर देता हूँ. Each participant should have the benefit, no? कभी क्या होता है, राकेश एक्चुअली सेड द राइट थिंग. जरूरी नहीं है ना हर इंसान इमीडिएट डिसीजन ले सकता है. Absolutely. हाँ. So it was a wonderful to have all of you regularly coming. This is what is the power of connection. So Mukund inspired each one of us, has given 100% to us, and we are looking forward to more session from you, sir. So I will say good night, but